guys, and have a discussion on budget. Uh, First of all, this budget will be very unique in terms of providing the providing the basic supports to the common people and as well as for growth. So when we say this time the budget is not being prepared for any populist thing. So when I say populist thing, that means the budget will not mean to towards any political benefits. So why? Because at present we are in a mid of general election. It's already been 2 years been completed for general election. Generally you will find a populist budget 2 year before 2 year before a general election. So that is not been expected this year. I believe this budget will be more towards targeting the growth which we were facing from last 2 years. Luckily this year was very good for country, although pandemic still continued from the last year, and we have witnessed one of the major chunk of the casualties, the death rate in the month of April May last year. But still India has seriously fought it well, and we have done it a remarkable job in terms of growth. Okay, there are certain loopholes, there are certain gray areas specifically about the employment rates that can also be the concern, but on a broader note India has done some really good job in terms of coming up on to the back on the growth path. So budget will actually going to provide the entire structure. The budget will going to give you the path of next 1 year. So that will be really important for any economy, any country, or specifically the countries, the greater countries prepare their budget on a very positive note. And you must be aware that almost all developing country prepare the budget on a deficit side. So when I say deficit side, that means they plan more expenditure than their income. So fiscal deficit you will find always in a budget. So that is being there in since I think 3 decades now, that the Indian government has also started preparing the budget on deficit side. So we will talk about all, but let us begin with a small quiz first. Okay, and I will give you 1 minute for this. Okay, so you know who is she? You know who is she? So question is not about her. This is not the question about her. I'm sure everyone know who is she. She is our finance minister, Mrs. Nirmala Sitharaman. You can see the sales girls to finance minister. That is what the beauty of Indian politics is all about, and that is the main thing about democracy. You should be feel lucky enough that we are living in a country called India where democracy are there, and the sales girls also got chance to become a finance minister of country. So the question is, this is FM's which budget? कौन से number का budget she is presenting? Why I am asking, you will come to know this. First budget, second budget, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, nine. What is the answer? Okay, I started receiving answers now. Wonderful. See, I cannot give you more time. I know you can search in Google and give me an answer, but I believe you should remember that this is for your preparation per se. So yes. The correct answer for the question is she will be presenting fourth budget this year. She will be the first woman who present fourth budget. इसके पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि who was the other woman who presented 3 budgets. Okay, you will find it very interesting, and I believe you will learn out of it. That is what the quiz is all about. I will be asking few questions, and I will be leaving behind certain questions for your preparation per se. Okay, always remember, it's not about the current affairs, it's about your understanding towards the news. So please identify who is the other lady who has presented 3 budgets. So this is what the fourth budget, and she will become, I am sure it is still not there, but she will become the lady who will present the fourth budget on this 1st February. So let us begin with the discussion.
some important facts about the budget 2022. You will be find it very interesting. Again, I'll not take much time because these are the simple things. We'll talk about just on the things which has been required. Okay, I believe you all are sitting with your paper pencil and you are making notes. It should not happen like you will just listening whatever I'm trying. Okay, I have received answers also for other lady who have presented the 3 budget. Okay, fine. I'll not tell you. Perfect. So the main important facts about the budget is this will be the first budget which will be completely paperless. So अगर आपने बजट इसके पहले कभी धोखे से देखा भी होगा, so you must have witnessed that कि एक बड़ा गाड़ी भरकर बड़ा टेम्पो भरकर बजट का पूरा वो सामान आता है और वो बजट सारे सांसदों को पेश किया जाता है और वो एक हार्ड कॉपी के फॉर्म में रहता है. So this time ऐसा नहीं होने वाला है. This time the entire budget will be paperless. The main जो short notes होंगे that will be prepared by finance minister. But this is one of the good step. We are living in a world of where the entire things need to be on online mode. So why we need to prepare? Why we need to go with the offline budget? So that is good thing. एंड अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हलवा सेरेमनी ये एक ट्रेडिशन है कई सालों से. एंड द ट्रेडिशन इज अबाउट बजट के पहले जो होता है, बजट के दिनों के पहले जब बजट कंप्लीट हो जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिशियली जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए हलवा प्रेजेंट किया जाता है. ये हलवा सेरेमनी होती है. दिस टाइम ड्यू टू प्रोटोकॉल इट विल नॉट गोइंग टू हैपन. ठीक है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस बार भी प्रोटोकॉल स्ट्रिक्ट है बिकॉज दिस टाइम इन जनवरी इटसेल्फ वी हैव विटनेस द ओमिक्रॉन. लास्ट ईयर तो ये जनवरी में थोड़ा सेटल्ड हो गया था बट बाद में जाके आपने देखा था कि पैंडेमिक बाद में पीक पकड़ा था. सो ब्रॉडली यू कैन सी these are the few important points that you need to remember about the budget. Protocols will be there and Ms. Sitaraman, yes, she will be presenting in Parliament itself. All the members of Lok Sabha and major prominent members of Rajya Sabha will be sitting in the budget. Budget need to be presented before cabinet. Cabinet is nothing but the core minister of including the prime minister just immediately before. And one day before क्या आता है? बजट के एक दिन पहले कौन आता है, क्या प्रेजेंट किया जाता है? एनीवन, एनी आइडिया? जस्ट यस आकाश, वेरी गुड. कैन यू इलैबोरेट व्हाट इज ESS? इट इज इकोनॉमिक सर्वे. सो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाएगा बजट के एक दिन पहले. उस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सर्वे से आपको बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि एग्जैक्टली हमने किस तरीके का परफॉर्म किया है अभी तक इकोनॉमिक सर्वे और आने वाले में किस तरीके का बजट पेश होने वाला है. बट ऑन अ ब्रॉडर नोट, इकोनॉमिक सर्वे जनरली गेट प्रेजेंटेड इन फर्स्ट जस्ट वन डे बिफोर. 1 फरवरी से बजट स्टार्ट हुआ था 2017 से. इसके पहले तक बजट पेश हुआ करता था लास्ट डे ऑफ फरवरी. ठीक है. अभी 2017 ऑनवर्ड्स, why I am giving you the name because it is exactly 5 years before and the political environment was same. What is the political environment right now? UP election. So the same thing was there in 5 years before also, and that year's onwards budget has started presenting on the 1st February. The reason given for this is actually the gap between the budget presented and the financial year completes is only 1 month. So they wanted to extend the financial year gap and budget presentation for 2 months. That is why this decision has been taken by the cabinet that year. और उसके बाद से बजट कब से पेश होने लगा है? 1 फरवरी को. ठीक है. इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि अरुण जेटली वॉज फाइनेंस मिनिस्टर. ड्यू टू हिज हेल्थ ही कुडंट प्रेजेंट द लास्ट बजट. उनका बजट किसने पेश किया था? Who has presented the last budget of Arun Jaitley ji ka? Piyush Goyal, who is the commerce industry minister right now. And after that, as soon as the new government came, our new finance minister has become Nirmala Sitharaman. She will be presenting the budget 19, 20, 21. She has already presented. She will be presenting the budget for 22 this year. Okay. So these are the few basic information. Will not going to elaborate much on this. Now let us talk about mainly any budget, any government's budget comprises of
two basic things, basically expenditure and receipt. ठीक है, so expenditure is basically where the expenditure is moving. It will be planned, unplanned, capital, revenue, whatever be, I will be explaining in detail. Receipt is the where the income are coming. So I will be sharing you a wonderful graph in which you will come to know where the expenditure is going and where the receipts are coming. That will give you a greater understanding. See, एक बात, इस बात को प्लेज कीजिए अपने लिए, एक प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि आफ्टर those whoever is attending today's session will compulsory try at least to see certain points of the budget in 1st February and compulsory read the paper on 2nd February. Whatever be the mode paper of you want, you can read it, Hindi, English, Marathi, I'm not sure, whatever the language that you are using. It is better if you will purchase a Times of India, because they have a tradition of giving an elaborated discussion. It won't cost you more than 5 rupees. Please purchase a Times of India paper, or if you are having other newspaper also, you can do it. So after the 1st February, on 2nd February, you will find entire detail, and very very important things can be, जो आज हम discuss कर रहे हैं, can also be there and addressed. And once you will understand today's discussion, somehow that will help you to read the budget that day, and that will give you a sense of confidence, and वो एक tradition बन जाएगा. I still remember my days when I was learning. I still remember one of my uncle has taught me few things, and that वो दिन से लेके आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने बजट नहीं देखा है, and it has been almost 20 years now. Why? Because somebody has told me like ये चीजें करना है, ये इसके प्रॉब्लम्स हैं, ये इसके ऐसे. अदरवाइज बजट हमारे लिए क्या होता था? टैक्स कम हुआ क्या, क्या आइटम कम हो रहा है, क्या आइटम ज्यादा हो रहा है? नो, फॉर अ लर्नर कि इस आइटम में कितना प्राइस बढ़ा है वो एक मैटर ऑफ फैक्ट होगा. एज अ कंज्यूमर, when we think about budget, it's different, but as a learner, when we think about the budget is different. So I think you should read the budget as a learner point of view and try and adopt and think very very quickly on that, because उसी पे आपका करियर इन फ्यूचर में बनने वाला है. ठीक है, so expenditure and receipt side में जो budgets होते हैं, that we will be talking about. So let us try and understand first the expenditure section of it. Capital expenditure and revenue expenditure. From the slide itself, it has been clearly elaborated that there are two types of expenditure of government, that is capital and revenue. For a simple sentence, capital expenditure are those which are actually being done for creating any type of asset or paying off any debts. So in a simple sentence, आप अपने आप से कंसीडर करके देखिए, आप अगर कोई घर परचेज करते हैं, आप अगर कोई फैक्ट्री परचेज करते हैं या कोई कार परचेज करते हैं, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? एक असेट क्रिएट कर रहे हैं. हो सकता है वो कार हमने रीसेल करने के लिए, या कार को हमने किसके लिए परचेज करके रखा है कि इसको रेंट पे करने के लिए. सो ऑन अ ब्रॉडर नोट, व्हेन यू आर डूइंग इट, तो दैट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर यू. Purchasing a house, purchasing some building, some land, anything like. So similarly, government also have some capital expenditure. So capital expenditure, like if government is creating a flyover, government is giving a loan to union state government is actually reducing their existing loan. तो आपको पता होना चाहिए कि जब डेफिसिट बजट होता है, इसका मतलब क्या है कि इनकम एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम. सो एक्सपेंडिचर अगर मान के चलिए 100 है और इनकम 80 रुपीज ही है, तो वो 20 को फाइनेंस करना पड़ता है, और 20 के लिए क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा. सो वो लोन जो लिया जाता है उसको पे ऑफ करने को भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है. सो एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, विच आर गुड कैपिटल एक्सपेंडिचर? विच आर गुड कैपिटल एक्सपेंडिचर? Those who are actually creating the assets. The assets अगर आपका क्रिएट हो रहा है, आपने अगर बड़ा कोई रोड कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, या फ्लाईओवर बनाया हुआ है, या मेट्रो बनाया हुआ है, या इस टाइप से कुछ असेट्स की जा रही है, सो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत अच्छे होते हैं, राइट. एंड ऑन अ ब्रॉडर नोट, कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे भी किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत क्रूशल है, क्योंकि वो अल्टीमेटली इंटाइटल्ड होता है किस तरीके से इकोनॉमी मूव कर रहा है आपका. और क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट है, हम अभी आने वाले स्लाइड्स में मैं और आपको इंप्रूव डिस्कशन करूंगा. ठीक है, सो कैपिटल इज एक्सपेंडिचर एंड नॉन रिकरिंग. क्या आप घर हर साल परचेज करते हैं? नहीं. तो घर हम लोग ने लाइफ में एक ही बार परचेज किया,
आप लोग ज़्यादा मेहनत करोगे तो 2 या 3 बार भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट इतना तो कंफर्म है कि हर साल तो नहीं परचेस करेंगे। तो इट इज़ नॉन रिकरिंग, इट विल हैपन वंस इन अ वाइल, और बहुत रेयर टाइम पे होता है, और इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। व्हाट अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाउ? सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर, which are the revenue expenditure which are in a recurring nature, so जो रेगुलरली होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप हर मंथ पे करते हैं, वैसे गवर्नमेंट के भी कई सारे रिकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं। तो उसमें से गवर्नमेंट अगर फूड सब्सिडी दे रहा है, या फिर सैलरी उनके स्टाफ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल LIC आप ले लीजिए, या फिर आप रेलवेज ले लीजिए, इन सब के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ के जो सैलरीज होती हैं, जो खासकर स्पेसिफिकली कंप्लीटली सेंट्रली रन होते हैं। LIC तो खैर अभी खुद एक सेपरेट कंपनी है, तो उसका सैलरीज जो है वो LIC खुद भी मैनेज कर सकता है, वो तो जब प्रॉब्लम होगा तब गवर्नमेंट उसको बेल आउट करेगा। बट कई ऐसे सेक्रेटरीयाट्स होते हैं जहाँ पर डायरेक्ट सैलरी अलॉटमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट ही करता है सैलरी, तो उन सैलरीज को पे करना है। प्रोक्योरमेंट्स फॉर मेडिसिन और प्रोक्योरमेंट फॉर टैक्स बोर्ड, प्रोक्योरमेंट मतलब उसको स्टोरेज करके, उनको परचेज करके उनको रखना, ताकि सोशल नीड के हिसाब से ये किया जा सके। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, मंथली होंगे नेचर में, ईयरली होंगे, और वो हर साल आपका इंक्रीज किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम से इंक्रीज होते चले जाते हैं। सो कैपिटल एंड रेवेन्यू टाइप से ये 2 एक्सपेंडिचर्स हैं जिसमें आपको समझना है कि गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है, और गवर्नमेंट इस पर एक्सपेंडिचर कैसे प्लान करता है, उसी लिए बजट किया जाता है। अल्टीमेटली आप ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट डज नॉट प्लान expenditure by their income, they plan their expenditure and then accordingly they plan their income. This is the actually the power of government. क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नो, हम लोगों को उल्टा करना पड़ता है, हम इनकम के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर प्लान करते हैं। ये गवर्नमेंट क्या करता है? एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग इनकम प्लान करता है, और वही इनकम को कैसे रेस करना है, दैट इज व्हाट द टास्क दैट फाइनेंस मिनिस्टर इज। एक्सपेंडिचर करना बड़ी बात नहीं है, I can do it any amount of expenditure, but the task is how to reduce that gap of income and expenditure, और income को हर साल कैसे increase किया जाए, और उसमें भी political pressure अलग है, और normal people के prices नहीं बढ़ना चाहिए। आपको ये लगेगा कि सर बहुत आसान है, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, गवर्नमेंट ये कर दे, इतना ईजी नहीं होता। इट्स वेरी वेरी टफ टास्क to be a finance minister, and that to be in a tough time like COVID. It is seriously a tedious task. This is a very very unlucky to the finance minister, because when she joined as a finance minister, India was struggling to growth. India was really struggling in 2019, and as soon as she has presented her second budget, we were about to start a pandemic. On a third budget, she has presented entire budget on the entire problem of pandemic. In the fourth budget, अभी तो फिर से आप देखिए pandemic end नहीं हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली फॉर अ लेडी हु इज प्रेजेंटिंग अ बजट, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल ईयर लास्ट 4 ईयर। इसमें अरुण जेटली जी काफ़ी लकी थे, when the new prime minister came in 14, that time India was moving upward, so that time the presentation of budget was not that problematic in terms. Basically only problem came in 2016-17 when demonetization happened. Otherwise remaining all the financial years you can see the budgets were pretty decent, and उसका काफ़ी प्रॉपर हुआ था। बट ये जो 2-3 साल हैं, it was very very difficult. So I hope you understood what is capital and what is revenue expenditures. Let us have one more quiz, and then we'll talk about income also. Let us talk about income also, but let us have one more quiz. Now, because we have already talked about how the expenditure is planned, so we really need to understand who advises it. So who is CEA? Chief Economic Advisor. He is the supreme person who advise on entire economic activities. So in 2 days before only, this person has changed. ठीक है, although the post was vacant since December, Mr. Subramaniam has actually completed his term, but nobody was there in Chief Economic Advisor post. So tell me who is the person. I am giving you a hint by putting his photograph. He is the new Chief Economic Advisor. चलिए, so many answers. Avanti, Rushikesh, Aryan, Ojas, fantastic. So
The right answer is Mr. Dr. V. Anantha Nageshwaram. It is a most important bureaucrat post of country. You should remember, Chief Economic Advisor is the person who is advising Prime Minister Office, Finance Minister Office on all economic related activities, and ultimately India में economic activity सबसे ज़्यादा matter करता है. This is, we are lucky nation. वी आर नॉट लिविंग इन अ कंट्री वेयर डिफेंस और बाकी एक्टिविटीज ज़्यादा मैटर करता, हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज़्यादा मैटर करता. तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट. डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरम, व्हाट यू कैन डू फॉर एज एन होमवर्क फॉर दिस, यू कैन आइडेंटिफाई अबाउट हिम when he did his education, where he did his education, schooling, or what exactly he was pursuing before that. ये सब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं about him. So this is second quiz for the day. Now let us talk about, this is the most important slide of the day. This will explain you every single thing on a broader note, and I believe you will be able to understand exactly what I am trying to say after this. Okay, so please concentrate. There is a slide which shows where is the rupee coming from and where the rupee is going. Okay, and in the rupee comes from also there are two slides, two rows basically. One row is estimate and second is revised of it, and in the same thing rupee goes to is estimates and revised. So we will explain, I'll explain you items mainly. The numbers are ultimately important to understand, but the numbers does not really matters to us for a learning purpose at present. We will talk about only the problems area, the gray areas about it. Okay, so broadly, as a government, you have a supreme power of going for a taxation. So you can actually levy a tax to normal people. This is what the normal rule since ancient time. It's not the rule, it has been came just this government or last government. It has been there since an ancient time. So you should remember, India or any nation, generally let's talk about more on Indian side. India will have three major sources of their income. Okay, the first major source, it is written in front of you. है ना. Second and third is actually not written. It is there, but वो direct form में नहीं है. Can you tell me the other two sources of the income? First source is taxation. They will put a taxation to you. What are the other two sources? Other two sources of the income. पैसा कहां से आएगा? Try. Please try. उसको क्या बोलेंगे? नो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लोन, सर्विस सेक्टर, एक्साइज सब एक इसमें आ जाता है. अदर टू ब्रॉडर सोर्सेस, देखिए स्मॉल नहीं बताइए. लाइबिलिटी साइड, ओके. Talk about some more thing. GST will include in taxation. Borrowing, yes. Now I was looking out that word. You talked about interest. Some or people also talked about few more things which is related to it. Second source of income for a government is borrowing. जो आपके पास भी है, अपने पास पैसा कम पड़ता तो अपन भी बोरो करते. ठीक है. पहला वाला है क्या? टैक्स लगा सकते हैं हम लोग? नहीं, हम लोग टैक्स नहीं लगा सकते. तो फर्स्ट इज टैक्सेशन which has been the supreme power of government. Second is borrowing. Third, tell me third. Third source of finance. Yes. Amen. Very good. So the third source can be called as disinvestment or privatization. आपके पास भी ये रास्ता है. अपने पास अगर पैसों की कमी है तो अपन या तो लोन लेंगे या अपनी असेट्स को गिरवी रखते हैं या असेट्स को बेच देते हैं. आपके पास गोल्ड है तो आप क्या करोगे? पैसे की जरूरत है तो गोल्ड. वैसे ही गवर्नमेंट भी ये करता है. तो हमारे पास क्या रास्ता नहीं है? टैक्सेशन का. बट व्हाट वी हैव टू मोर थिंग्स. फर्स्ट, सेकंड थिंग इज बोरोइंग. थर्ड थिंग इज डिसइन्वेस्टमेंट बोलिए, प्राइवेटाइजेशन बोलिए, और अभी मोनेटाइजेशन का नाम भी आ गया. विल टॉक अबाउट मोनेटाइजेशन बिकॉज लास्ट बजट में ये इंट्रोड्यूस किया गया था. व्हाट इज मोनेटाइजेशन? विल टॉक अबाउट दैट ऑफ. तो सेलिंग ऑफ द assets or disinvestment of the asset is the third sources of the income for any government.
that can be considered. So now let us try and understand this slide. So government have a taxation. पहले मैं taxation पे आता हूँ. Taxation दो प्रकार का होता है, direct और indirect. So direct taxation which has been directly जो apply किया जाता है. Just give me a second. Okay. So fine. So direct taxes are those taxes which has been directly levied on individual or corporate. So there are two types of direct taxes. You can see here, first is corporation tax and income tax. Corporate tax is nothing but what? The company tax, right? जो companies को directly charge किया जाता है. If you are an organization and if they are levying it the taxes, तो वो corporate tax. Income is for an individual. हम आप जब इनकम कमाएंगे और आपका वो स्लैब के बाहर निकल जाएगा तो वो डायरेक्ट टैक्स होंगे. सो दीज टू आर डायरेक्ट टैक्सेस, डीटी बोलेंगे, ठीक है. इसके अलावा जो बचे हुए टैक्सेस दिख रहे हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट. तो कस्टम्स कहाँ अप्लाई होते हैं? जब हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जाता है ड्यूटीज, तो वो कस्टम ड्यूटीज कहलाती हैं. इंडिया में अलग अलग ग्लोबली कुछ और नाम होगा, कैसे भी. एक्साइज ड्यूटी एंड जीएसटी. अच्छा, अब एक क्वेश्चन मेरे से आपको अराइज होता है. जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुआ था उसने सारे टैक्सेस को एबोलिश कर दिया था. ऑफ कोर्स कस्टम ड्यूटी तो उसमें अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, वो बाहर के गुड्स का है, तो वो तो नहीं आएगा. तो जीएसटी आने के बाद भी एक्साइज ड्यूटी क्यों है? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी को खत्म करने का काम किसने किया था? जीएसटी ने. बट स्टिल एक्साइज ड्यूटी इज देयर. सो ऑन व्हाट प्रोडक्ट्स इन आवर कंट्री स्टिल एक्साइज ड्यूटी इज बी चार्ज्ड? दिस इज माय क्वेश्चन. क्विकली, on what products in our country still excise duties be charged? Political बहुत बड़े इसके वो है. All are indirect taxes. Yes, petrol, or you can say petroleum products. One thing is sure, petroleum products. Other thing, sale of liquor. Yes, specific luxury items, petroleum products, sale of liquors. Yes. So these items still are not in a bracket of GST. उसके कई political and economical reasons हैं. फिलहाल we will not talk about much about them, but this is basically जो revenue आ रहा है, this revenue is nothing but through those items. Petroleum products like petrol, diesel and all, then liquors and other items. So including these three, this is called as indirect taxes. So look at the number. Corporate tax is how much? 13, right? 13. 14 is income tax. 3 is custom duty. 8 is union tax and 15 is GST. Can you add quickly? This is 27, 30, 38 and 15. So 38 plus 15 is 53. So roughly out of their 100 rupees, 53 is coming from tax revenue. So tax is the most important source for any government undoubtedly. You can debate on कि जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, खासकर जो डेवलप इकोनॉमीज हैं, उन पे टैक्स रेशियोज काफ़ी कम होता है, उनकी अदर इनकम ज़्यादा होती हैं क्योंकि उन लोग कम टैक्स लेवी करते हैं. वो एक अलग फैक्ट ऑफ साइंस है. वी विल नॉट टॉक मच अबाउट दैट एट प्रेजेंट. वी विल बी मेनली डीलिंग दैट 50%, मोर देन 50% वेयर इनकम इज कमिंग फ्रॉम डायरेक्ट. नाउ रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या कहता है 2021 का कि एक्चुअली 18 plus 17, it is how much? 35, right? 35 plus 4, 39, 39 plus 7, 46 plus 18, 64 is being collected. That means एक्चुअल जो हमने एस्टिमेट लगाया था उसकी जगह पे जो लास्ट ईयर मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो एक्चुअल एस्टिमेट्स था वो कितना हो गया है? 64% से हो गया. मतलब वॉट एवर बी द एस्टिमेट दैट वी वर प्लानिंग, उससे हमारा रेवेन्यू कितना आया है बजट एस्टिमेट्स में? जो हम प्लान कर रहे थे लास्ट ईयर वो 64 था, बट व्हाट इज द बजट एस्टिमेट? इट इज कमिंग 53 ओनली. दैट मीन्स द इनकम हैज बीन फॉल डाउन बाय अराउंड क्लोज टू 13%. क्लियरली समझ आ रहा है बात आपको? ऐसा क्यों है? ये बहुत प्रैक्टिकल है. वाई? बिकॉज ये जो 18% का 13% है लास्ट बजट में और उसके पहले बजट में भी गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्सेशन में काफ़ी बड़ा बदलाव किया था, काफ़ी कम कर दिए थे.
इसीलिए ये बदलाव हुआ और कॉर्पोरेट टैक्स कम हो गया आपका। वैसे ही आप इनकम टैक्स में भी, स्लैब में भी आपने देखा था चेंजेस हुए थे, तो 17% पे आ गया, 14 पे हो गया। सो दैट इज अगेन अ कंपल्सरी डाउनफॉल। और बाकी डाउनफॉल्स भी जो दिख रहे हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट की रेवेन्यू में कम होने के कारण है। तो इसका क्या मतलब है कि 13%, सॉरी 11%, ना दिस इज 11 एक्चुअली, क्लोज टू 11% का जो डाउन हुआ वो बहुत बहुत बड़ा गवर्नमेंट के लिए हर्ट हुआ। अब इसके अलावा जो अदर इनकम्स हैं लाइक नॉन टैक्स रेवेन्यूज, सो नॉन टैक्स रेवेन्यूज वे 6। कैन यू टेल मी व्हाट आर द नॉन टैक्स रेवेन्यूज? नॉन डेट कैपिटल असेट्स एंड 36% were borrowing, 36% were borrowing. So non tax revenue, non debt capital receipts and borrowings will be the other section. Look at, they were projecting 20% to borrow, but how much they borrowed? 36. That is what has been actually said for the last year, that government has borrowed aggressively. And as I told you, three sources: first is tax, and okay, so this means that government have to borrow more, or government have to think about more other options like selling of their assets or a disinvestment. This is what happens when the pandemic come, and that to be a pandemic like this is once in a century. It's not a once in a decade, it's a once in a century. Last 100 year we have in human history has never witnessed such type of a pandemic, and that to be on an economic scale. Country like India, which has been highly coupled with other economies, so we have a huge impact on overall, on all the fronts, medical front also, but parallelly economic front also, India got impacted really really badly. So that is why government has done borrowed more and more money. So as I told you that the government has three major sources of income, which has been taxes, which has been borrowing, and which has been disinvestment. One thing which is we can see, government is trying and implementing more on borrowing side last year. This time we will be seeing that the disinvestment or sell of a asset will be more. Recently, we have seen one of the oldest company, the Maharaja, was sold to Tata's. Which company? Which company they have sold recently? Air India. So Air India has been recently sold to Tata's, the Maharaja of airlines, we called as aviation. It was initially initiated by JRD, and once again it is moved towards the Tatas only. Recently, like the Tata Sons chairman has recently taken over the Tatas. In near future, whenever you are flying from Air India, it will be with Tata logo. Okay. So this is the rupee is coming from. You will have any queries, you can ask me in between in meanwhile. But let us try and understand the rupee going to, where the expenditure is going exactly. So they have planned for, this is what you can see, the central sector scheme, the interest payment, defense, subsidies, finance commissions, state and shares, pensions, other expenditure, and centrally sponsored scheme. These are major items for any government to be expenditure. So when I say central sector scheme, what does it mean? What are this covers? Basically central sector scheme, what it exactly be there? क्या आएगा उसमें? Tell me. सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में क्या आएगा? अरे भाई, ओके, यस, और the schemes which have been financed by central government, स्वच्छ भारत अभियान, परफेक्ट। और ऐसे बहुत सारे स्कीम है, जैसे PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना, you can see 22 was the target, and India has done remarkably well for this. So all the schemes which has been financed by central is already been defined, पहले से ही बजट में डिफाइन करना पड़ता है कि मैं इतना स्कीम्स में पैसा खर्च करूंगा। और देखिए, इसलिए दोनों का अमाउंट सेम है, they have not changed it. Whatever the estimate वो रिवाइज था, वो estimate भी उतना ही आया। Interest payment increase हो गया, it has been pretty logical. Why? Because the borrowings is also increased, and suddenly the ratings were also not good for India, तो हमारा borrowing cost भी वैसा बढ़ जाता है, क्योंकि entire world was facing a pandemic, तो वो बहुत pretty much logical था। Interest इंटरेस्ट पेमेंट के बाद डिफेंस में कोई चेंज नहीं आया, डिफेंस रिमेन्स द सेम, द 8%,
of your entire budget. It is one of the very important thing, and India is top 5 nation across the world spending in terms of expenditure, spending in terms of डिफेंस. सो डिफेंस में और बहुत जरूरी भी है, व्हेन यू हैव अ सर्च वल्नरेबल पड़ोसीज नेबर्स, तो आपको कहीं ना कहीं डिफेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. We can see the Pakistan, the problem with China, then Nepal. Yesterday's news where Nepal was actually doing a census in Lipu Lake. लिपू लेक, काला पानी, विच इज बीन नेपाल और उत्तराखंड बॉर्डर में आपको ये मिलेंगे. तो यहाँ का सेंसस कर रहा है, जबकि वो प्लेसेस किसकी हैं? इंडिया की. तो वो क्या कहना चाह रहा है कि वो हमारी प्लेस है. हम सेंसस कब किया जाता है भाई? सेंसस किसका किया जाता है? अपने देश के लोगों का. आप पता कर रहे हो कि लोग कितने हैं, कौन से एज ग्रुप के हैं, अल्टीमेटली डेटा कलेक्ट किया जा रहा है. सो दैट कैन बी द कंसर्न इफेक्टिवली. आफ्टर दिस 6 to 9% subsidy बढ़ गया is again logical. You can see in the first pandemic, the entire working population, entire जो rural working population थी was dismantled completely. We have seen the migrants roaming around across the country, and they have to shift their own local places. We as a Maharashtra state, you find that huge amount of laborers and migrant workers are coming from Bihar, UP and other places. So this is pretty logical that government have to serve them, and that is why they have planned for 6% and they have to expend 9%. फिनांस कमीशन, अब जब यहां पर आपका पैसा कंप्लीट हो खत्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फिनांस कमीशन के लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया था 20, और वो अब कितना हो गया है? 60. फिनांस कमीशन कौन होता है? जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान करता है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ सपोज समृद्धि महामार्ग है, ऑल्दो ये नागपुर और महाराष्ट्र के बीच का है, बट स्टिल अगर आप देखेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फंडेड, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रूल्ड है, बट उस पर अगर पैसा सेंट्रल का कुछ कंट्रीब्यूशन है, तो वो कंट्रीब्यूशन देने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, और वो प्लानिंग ही फाइनेंस कमीशन बेसिकली वहां से आपको मिलेगा, और वहां से पैसा आगे अलॉट होता है और फिर अलग अलग स्टेट्स पे जाता है. तो उसमें कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा, कुछ सेंट्रल का. कुछ ऐसी स्कीम होती है जो सेंट्रली रूल्ड होती है कंप्लीटली, जो बिल्कुल ही सेंट्रल उसमें रन करने वाला है. कोई जैसे डिफेंस प्रोजेक्ट हो गया. क्लासिकल एग्जांपल इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. It is although in Vadodara, but it does not come under the territory of Gujarat's government. The area which is, once you should visit or Statue of Unity, you will find it very attractive. It is the highest statue in the world. So it's still अभी highest statue in the world. तो वो territory जो है वो central government के अंदर में आती है. तो अगर गवर्नमेंट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको फंड करेगा और उसको मैनेज करेगा. जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं इंडिया में, वो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो उसमें ज्यादा जितना भी डेवलपमेंट होगा वो उसी के अंडर में चलेगा. तो फाइनेंस कमीशन बेसिकली प्लान करता है आपके लिए एक्सपेंसेस, वो नहीं हो पा रहे हैं. एंड अदर ट्रांसफर, स्टेट गवर्नमेंट को ये बहुत बड़ी लड़ाई खासकर नॉन बीजेपी रूल्स कर रहे थे कि हाँ, आई एम सो सॉरी, आई हैव जस्ट मिस्ड इट. फाइनेंस कमीशन इज 10% and state share transfer is 16%. So that is what I was saying. Ki state government was basically fighting with the central government, specifically non-BJP ruled states, were saying that जब GST आया था, देखिए ये क्या आइटम है स्टेट शेयर्स. मतलब आप जब GST देते हैं, आप कभी होटल में जाएंगे बिल पेने, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको? CGST एंड SGST. तो CGST कौन होता है? सेंट्रल जीएसटी. एंड स्टेट जीएसटी क्या होता है? जो स्टेट के लिए कंट्रीब्यूट है. तो एज पर द जीएसटी के नॉर्म्स में, उसके रूल्स में, उसके इंटायर उसके जब भी मॉडरेट किया गया था, बनाया गया था, उसके हिसाब से आधा टैक्स गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा और आधा टैक्स, बट कलेक्ट कौन करता है पूरा जीएसटी? सेंट्रल गवर्नमेंट. और फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन वो पास ऑन करते हैं. बट ये जो 20 से 16 आपको दिख रहा है, तो ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट को उनके ड्यूज नहीं दिए. क्योंकि जब जीएसटी आ रहा था तो स्टेट गवर्नमेंट को बड़ा कंसर्न था, इसलिए जीएसटी 30 साल पहले लाया गया था. 25 ईयर्स एटलीस्ट. 2017 में पास हुआ. 2017 से अगर आप 25 ईयर्स, मतलब 90s, लेट 90s में जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी. बट वो इंप्लीमेंट होते होते 25 साल क्यों लगे? क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत खतरा है, खासकर अगर सेंट्रली रूल्ड नहीं है. सो फॉर एग्जांपल,
वेस्ट बंगाल इज बीन रूल्ड बाय, ऑलवेज इट इज बीन रूल्ड बाय अ नॉन सेंट्रल पार्टी। तो वो आपको मिलेगा कि भाई वहां पर हमेशा एक कंसर्न रहा है कि वहां कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, तो इसलिए जीएसटी हम लोग अलाउ नहीं कर रहे थे, बट समहाउ इट गॉट मैनेज। दिस वाज द मेजर उपलब्धि बोल सकते हैं आप फॉर अ फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, क्योंकि जीएसटी को एक्सेप्ट करवा पाना बहुत डिफिकल्ट था। बट समहाउ गवर्नमेंट का ये समझ कहना था कि भाई सेंट्रल ने कई बड़ा एक्सपेंडिचर किया, किसके लिए किया? स्टेट पॉपुलेशन के लिए किया। अल्टीमेटली अब माइग्रेंट्स हैं, तो माइग्रेंट्स को पैसा दे रहा है तो गवर्नमेंट कहां से देगा? जो पैसे उनके पास थे, तो उन्होंने क्या किया, शेयर गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट का कम करके भेजा। इसीलिए बहुत फाइट चल रहा था, बट ओके, वो स्लोली स्लोली बाद में जाके वो मैनेज होने लगा। 6 से 5% पे आपका पेंशन, पेंशन जो स्कीम्स है गवर्नमेंट अब धीरे धीरे बंद कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट अब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बनेंगे भी तो कई सारे पेंशन स्कीम्स उसमें अप्लाई नहीं होंगे। तो इसलिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने का सपना देखते हैं तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि वो पहले जैसा जैसे मम्मी पापा को गवर्नमेंट की फैसिलिटीज थी वैसे मिलने वाली, ऐसा नहीं है। अदर एक्सपेंडिचर वो है जो प्लान्ड नहीं है। और अगला होगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होंगी? तो सेंट्रल उसमें स्पॉन्सर, जैसे मैं समृद्धि महामार्ग का जो एग्जांपल दे रहा था, या फिर आप और कोई भी जो गवर्नमेंट है, जो हाईवे है, जो स्टेट गवर्नमेंट है बट उसमें सेंट्रली कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, उसका कुछ हिस्सा है, बट ओनरशिप किसके पास रहेगी? स्टेट के पास नहीं, सेंट्रल के पास नहीं। ओनरशिप किसके पास रहेगी? और सेंट्रली पूरा जो कंप्लीटली सेंट्रल वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो कहां पर आ जाएगा? सेंट्रल सेक्टर स्कीम में चला जाएगा। अब अगर उसमें कंप्लीट ऐसा कोई रेल मार्ग उन्होंने बनाया, या कोई ऐसा हाईवे बनाया, ऐसा कोई ब्रिज बनाया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, वो पूरी सेंट्रली सेक्टर स्कीम पे चला जाएगा। तो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड स्कीम वो है जहां पर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, पर उसमें ओनरशिप स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं होती है। वो ओनरशिप किसके पास रहेगी? जो स्टेट पे, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, तो वो अपने अपने टेरिटरीज में आ जाते हैं। जितना इलाका उनका उतने इलाके की उनकी, फिर वो अपने हिसाब से उसमें टोल टैक्स कलेक्ट करे या वॉट एवर दे वांटेड टू टेक इट दे कैन कलेक्ट इट। सो इस तरीके से पूरा इनकम और एक्सपेंडिचर मूव करता है किसी भी कंट्री के लिए, है ना। अब आपको ये बात देखना है, इसको आपको ये बात समझना है कि इनकम जो गवर्नमेंट के पास आ रहा है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना पहला चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज होता है कि इनकम को बढ़ाया कैसे जाए विदाउट गिविंग एनी मच प्रेशर टू कॉमन पर्सन। दैट मीन्स इफ यू आर रेजिंग जीएसटी, जीएसटी बढ़ाने से क्या होगा? जीएसटी आपको आपको लगता है आप लोग टैक्स पे करते हैं, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं। आप अगर एक छोटा सा आइटम भी परचेस करेंगे, एक सोप भी लेंगे 10 रुपए का, तो उसमें भी जीएसटी लगाया जाता है। तो आप तो टैक्स पे कर ही रहे हैं, पैरेलली डायरेक्ट टैक्स भी पे किया जाता है, इनकम टैक्स। पापा आपके अर्न करते हैं, आप भी आगे जाके अर्न करेंगे तो आपकी इनकम पे टैक्सेस लगाए। अगर ये बढ़ा दिया जाएगा तो इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। अब जो बेसिकली मैं प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं इंडिया का, स्पेशली 2018-19 के बाद, उसको ध्यान से सुनिएगा कि क्यों इतना चैलेंजिंग हो जाता है किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, कंसिडरेबली इंडिया के लिए। 2018-19 के बाद जब से एनपीए क्राइसिस क्रिएट हुआ, इसके बाद से इंडिया में डिमांड का लैक क्रिएट हो गया, एक डिमांड का बहुत बड़ा डिफिकल्टी क्रिएट हो गई कि डिमांड नहीं हो रहा है प्रोडक्ट की। क्यों डिमांड नहीं हो रहा है? डिमांड का स्केर्सिटी क्यों आया? क्योंकि सडनली जो कॉन्फिडेंस होता है, आप खुद सोचिए कि आपको, आप जो एक्सपेंडिचर करने की सोचते थे प्री पैंडेमिक, वो अब आप सोच रहे हैं क्या? नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आपके मन में एक बात आ गया है कि यार अब कुछ भी हो सकता है। सो आई डोंट हैव दैट सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि अगर मुझे कुछ परचेज करना है तो मैं 10 बार सोचूंगा। आई एम ओनली डीलिंग विद द बेसिक एसेंशियल। So this is what the problem. It is actually not created by pandemic. Unfortunately, India पहले क्वार्टर में, फर्स्ट पैंडेमिक के क्वार्टर में 24% से डाउन हुआ था। This was world's largest. And luckily इस बार का जो क्वार्टर था उसमें हम वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रोथ हुआ पॉजिटिव हमारा। पहले क्वार्टर में पिछले साल 2020 वाले में सबसे बड़ा डिक्रीज था और इस बार सबसे बड़ा इंक्रीज था। तो प्रॉब्लम कहां होता है कि इंडिया में प्रॉब्लम पहले से शुरू हो गया था, और वो प्रॉब्लम के कारण ही इंडिया वाज स्ट्रगलिंग इन ग्रोथ। और मेन स्ट्रगल था डिमांड, और डिमांड मतलब आप पे कॉन्फिडेंस देना। सो मैं एज अ गवर्नमेंट, सबसे पहला टास्क मेरा क्या है कि आई शुड गिव यू अ कॉन्फिडेंस। भाई कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, एक्सपेंडिचर करो। गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि आप एक्सपेंडिचर करो? अगर आप एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो क्या इकोनॉमी रोल हो पाएगा? इंडिया की सबसे बड़ी ताकत 140 करोड़ पीपल है।
140 करोड़ पीपल होने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कंजम्पशन बहुत होगा, एक्सपेंडिचर आप आराम से कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर का ट्रेंड अगर आप देखेंगे 21 में, वी हैव विटनेस मोर देन 40 यूनिकॉर्न कंपनीज। यूनिकॉर्न कंपनीज कौन सी होती हैं? जो रेवेन्यू, जो जिनका वैल्यूएशन है मोर देन $1 बिलियन। उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है कि पीपल हैव मनी बट दे आर नॉट विलिंग टू स्पेंड, दे आर एक्चुअली रेडी टू इन्वेस्ट। इसलिए आप देखेंगे जमाने भर प्रकार की क्रिप्टो करेंसी से लेके जमाने भर प्रकार की अलग 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 एप्स आ गई और सडनली वो एकदम मूव कर गए, बहुत आगे निकल गए। तो पीपल के पास लोगों के पास पैसा है बट एक्सपेंडिचर करने के लिए वो कॉन्फिडेंस नहीं है। सो दैट इज व्हाट वी आर लैकिंग। सो बीइंग अ फाइनेंस मिनिस्टर द बिगेस्ट टास्क इज कि भाई वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस दे। तो इसके लिए क्या करता है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट करता है कि गवर्नमेंट खुद स्पेंडिंग करना चालू करता है। आप खुद सोचिए कि यदि मैं आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं बीइंग अ मेंटर, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ना कि आप जैसे आज मैं लेक्चर ले रहा हूं आपके सामने, मैं आपको बोलूंगा पढ़ो, बट मैं खुद ही पढ़ के नहीं आऊंगा तो आप क्या पढ़ोगे भाई? वैसे ही बीइंग एज अ गवर्नमेंट आपको ये रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि भाई आप स्पेंड करिए। तो यही चीज इस बजट में देखने को मिली थी कि गवर्नमेंट ने ऑल दो इनकम कम हुआ, स्पेंडिंग नहीं रोका और स्पेंडिंग बढ़ाया। और दिस ईयर ऑल्सो यू विल फाइंड गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी। स्पेंडिंग बढ़ने का फायदा क्या होगा? जो कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी में वो आपके पास वापस क्रिएट होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, आपकी गरीबों की सैलरी बढ़ेगी। तो वेजर्स की अगर सैलरी बढ़ेगी, उनके पास पैसा आएगा, वो बेचारे तो खर्च करेंगे ही, वो थोड़ी ना हमारे जैसे सेव कर करके रखेंगे, वो स्पेंड करेंगे। तो इकोनॉमी पॉजिटिवली मूव होना चालू करेगा और एक कॉन्फिडेंस देगा, और जब वो कॉन्फिडेंस आएगा हम भी एक्चुअली अमाउंट परचेज करना चालू करेंगे। सो ये एक साइकिल जब तक पॉजिटिवली वापस क्रिएट नहीं कर सकते गवर्नमेंट, तब तक हम वो कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। अभी जो ग्रोथ दिख रहा है 2 क्वार्टर में, वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हमारा बेस लो है, हम छोटे बेस पे हैं। तो छोटे बेस का परसेंटेज बहुत ज्यादा दिखता है, बट अगर यही बड़ा हो जाएगा और हमको वाकई में $5 ट्रिलियन पे जाना है बहुत जल्दी, एट प्रेजेंट इंडिया इज एट $3 ट्रिलियन, अगर वो 5 ट्रिलियन पे जाना है तो 5 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए एक्सपेंडिचर करना नॉर्मल पीपल का बहुत जरूरी है। एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, और एक्सपेंडिचर ऐसा आप जबरदस्ती थोड़ी ना करवा सकते, उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं ऐलान प्लान करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो ये बजट में गवर्नमेंट ने ये चीज अच्छा किया, इसलिए तीनों चीजों को यूटिलाइज किया जा रहा है। टैक्स को लिमिटेड फ्रेम में, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देंगे, इसलिए टैक्स नहीं बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी टैक्सेशन में कुछ बड़े चेंजेस होंगे, लास्ट ईयर हार्डली कोई चेंज था। इस बार स्टॉक मार्केट आपने देखा, 4 दिन पहले स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरा था। एक र्यूमर फैल गया था कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है जब आप शेयर परचेज करते हैं, तो एलटीसीजी उसमें अप्लाई करा जाएगा, ऐसा र्यूमर फैला, जबकि गवर्नमेंट ने साफ किया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए स्टॉक मार्केट 2 दिन में ही करीब करीब 2-2.5 हजार से ज्यादा पॉइंट नीचे चला गया था। तो ये आपको समझना है कि गवर्नमेंट विल नॉट गोइंग टू टच टैक्सेस, गवर्नमेंट विल ट्राई to boost their disinvestment part, and government will manage income certain way कि ताकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंडिचर जो है वो भी कम ना हो, और पैरेलली हमारा जो स्कीम्स है वो भी बराबर रहे, सोशल सेक्टर में स्कीम्स है वो भी बराबर रहे, और पैरेलली टैक्सेशन बढ़ाना ना पड़े। ये गवर्नमेंट का प्लान रहने वाला है आगे के लिए। जीएसटी विल नॉट, दे विल नॉट गोइंग टू टच, जीएसटी विल इंपैक्ट डायरेक्टली। जीएसटी केवल उसी चीज का इंपैक्ट बढ़ाया जाता है जो नॉर्मल पीपल के लिए नहीं है। इंडिया स्टिल हैव मोर देन 30% पॉपुलेशन लिविंग इन बिलो पॉवर्टी लाइन। 30% पॉपुलेशन, 140 करोड़ का मतलब लगभग 40 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं। उसके बाद मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है आज भी एक नॉर्मल इनकम पे रहती है जो बिलो एवरेज है। तो ऐसे लोगों पे जीएसटी बढ़ाना नॉर्मल आइटम्स में इम्पॉसिबल है, इसलिए गवर्नमेंट जीएसटी बढ़ाएगा तो किस पे बढ़ाएगा? बड़े आइटम्स में जो एक लग्जरी में होते हैं, जिसकी जरूरत एक नॉर्मल पीपल को नहीं होती, तो टैक्सेस उसमें जरूर चेंज होंगे। बाद में इनकम टैक्स पे होगा क्या? नो, इनकम टैक्स पे अगर टच किया तो और बड़ा दिक्कत होगा। मेरा यही मानना है कि इनकम टैक्स में भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला। कॉर्पोरेट टैक्स में ऑलरेडी प्रॉमिस किया हुआ है कि कॉर्पोरेट टैक्स हम नहीं बढ़ाएंगे, तो उसमें भी बहुत ज्यादा टच नहीं किया जा सकता। तो गवर्नमेंट विल सी इनटू इट कि कैसे भी इनकम इंक्रीज हो, ताकि एक्सपेंडिचर कम नहीं किए जा सकते। बोरो करेंगे बहुत सारा, तो जवाब है नहीं, बहुत ज्यादा बोरो करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंडिया के लिए उतना फायदेमंद नहीं होता है भाई। ठीक है, ऑन अ ब्रॉडर नोट। तो अगर हम आगे बढ़े, एक और क्विज पे जाते हैं एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट डिस्कशन। हाँ,
तो वाई व्हाट आर नॉन टैक्स रेवेन्यू, आपने सोचा होगा मैंने वहां पर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था क्योंकि आई वाज नोइंग दिस कि दिस विल बी आवर थर्ड क्वेश्चन। गिव मी एनी थ्री नॉन टैक्स रेवेन्यूज ऑफ गवर्नमेंट। टैक्स रेवेन्यूज आ गए, तो नॉन टैक्स रेवेन्यूज क्या होंगे? हाँ? आई एम ऑडिबल राइट? आंसर्स आ रहे हैं राइट? गाइस आई एम ऑडिबल राइट? हाँ, यस यस बेटा। नीलेश यू कैन एग्जिट एंड कम अगेन। Nilesh, you can exit and come again. Brilliant. Interest collected, बहुत सारे answers. Very good, very good. Okay, fantastic. So the right answer for this is these many are considered as non-tax revenues, money which government earns as a dividend or a profit. So for example, let's say company like सेल या गेल या ओएनजीसी, ओएनजीसी सुना है आपने? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो ह्यूज कंपनी है वो कंपनी यदि डिविडेंड, डिविडेंड मतलब जो प्रॉफिट डिक्लेयर करती है, तो गवर्नमेंट उसमें हिस्सेदारी है। गवर्नमेंट का 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है, इसलिए गवर्नमेंट की वो कंपनी है। सो गवर्नमेंट अगर ये जो टैक्स जितनी भी कंपनीज होती हैं जब अपना डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, तो इसमें गवर्नमेंट को भी मिलेगा और नॉर्मल शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा। तो वो एक इनकम गवर्नमेंट का हर साल बंधा रहता है। इंटरेस्ट विच गवर्नमेंट अर्न्स व्हेन, जब वो पैसा उधार देती है, उधार पैसा लेती है तो पैसा उधार भी देते हैं भाई, ये चलता रहता है, एडजस्टमेंट बराबर चलता रहता है। ये आप भी देखेंगे कि आपके पास एक्सेस अमाउंट है तो आप किसी को लैंड कर दो, या फिर जब आपको कमी पड़ेगी तो अपन बोरो कर लेते हैं। तो जब आप लैंड करेंगे किसी को तो इंटरेस्ट उसमें मिल जाता है। मनी विच गवर्नमेंट रिसीव्स आउट ऑफ फिजिकल सर्विसेज सच एज स्टैम्प प्रिंटिंग, करेंसी प्रिंटिंग, मेडल प्रिंटिंग, ये सब प्रिंट करने के लिए स्टैम्प प्रिंट करते हैं। अभी स्टैम्प को ड्यूटी कलेक्ट होता है, ठीक है। तो कई ऐसी सेंट्रलाइज्ड जो होता है उसमें गवर्नमेंट को नेशनली लेवल पे, जो आप प्रॉपर्टी बेचते हैं और उसमें स्टैम्प होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी इज व्हाट सेंट्रल, बट ये स्टैम्प ड्यूटी स्टैम्प प्रिंटिंग के लिए। तो स्टैम्प प्रिंटिंग मतलब जो 100 रुपए का, 500 रुपए का स्टैम्प होता है वो कहाँ से आता है, वो कौन प्रिंट करता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंट करता है। बट जो ड्यूटी पे कर रहे हैं वो अपन यहाँ पे कर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट परचेज करके फिर आपको वहां पे पहुंचाता है, ठीक है। मनी विच गवर्नमेंट अर्न्स फ्रॉम जनरल सर्विसेज सच एज पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इरिगेशन, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, कम्युनिटी सर्विसेज, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू के पॉइंट्स में आएंगे। मनी विच गवर्नमेंट अंकर्स एज अ फीस एंड फाइन्स एंड पेनल्टीज, तो फीस, फाइन एंड पेनल्टीज होते हैं। कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज होता है गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे सपोज आपने इनकम टैक्स अपना लेट भरा तो उस पर फाइन चार्ज होगा, तो वो गवर्नमेंट की इनकम हो गई। आपकी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, भले ही आप कभी मेडिकल कॉलेज गए हो आप, सरकारी वाला, ठीक है, तो कभी जाओगे तो वहां 10 रुपए 5 रुपए का पर्ची काटना पड़ता है। भले ही वो आपको लगता होगा कि 10 रुपए क्या चीज है, बट वो जो पर्ची काटी जाती है वो भी गवर्नमेंट की एक फीस है। ऐसे ही स्कूल होता है तो स्कूल में भी 100 रुपए 200 रुपए ऐसी कोई फीस होती है चार्ज करने के लिए। तो वो सेंट्रली जितने भी स्कूल्स और सर्विसेज होती है उसके लिए, और ग्रांट जो गवर्नमेंट देता है उसको लेके। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं ब्रॉडली, इतने हो सकते हैं, और भी कुछ इसमें मिस हुए होंगे तो प्लीज यू कैन कवर इट आफ्टर दिस। Now we will talk about the expectation part. We are coming up into the end. आपके क्वेश्चंस आप तैयार रखेंगे, लास्ट 2-3 स्लाइड्स आर रिमेनिंग। तो क्वेश्चंस में मुझे आप पूछ ले सकते हैं, वट एवर द क्वेरी जो है, यू कैन अनम्यूट ऑल्सो, और चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो 5 मेजर चीजें मुझे समझ आई, ऑल्दो ये स्लाइड मुझे इमेज में मिला गूगल में, बट वट एवर आई फाउंड इज वेरी मच वट आई फेल्ट, ये बहुत हद तक उससे सिमिलर है। सो जो पहला पॉइंट है ग्रोथ को लेके, गवर्नमेंट में कंस्ट्रक्ट अ बैलेंस बजट का मतलब ये हुआ, लास्ट ईयर वी वर हैविंग द बजट व्हिच इज हाईली डेफिशिट बजट। डेफिशिट बजट मतलब गवर्नमेंट ने बोरो बहुत ज्यादा किया था। तो बोरो क्यों किया था? क्योंकि इनकम, अपन ने स्लाइड में देखा कि इनकम गवर्नमेंट की कम हुई, तो अल्टीमेटली अगर आपको एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, बट एक्सपेंडिचर कम कर सकते क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि और सोशल सेक्टर का एक्सपेंडिचर बढ़ गया। आपको फार्मर्स को सब्सिडी देना पड़ रहा है, महिलाओं को मंथली भत्ता देना पड़ रहा है, जो जो मनरेगा का एक्सपेंडिचर है,
काम हो नहीं रहा है, पर फिर भी आपको मनरेगा, मनरेगा मतलब प्रधानमंत्री रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत जो 100 दिन का जो वर्किंग दिया जाता है वो आपको देना पड़ रहा है। तो लास्ट ईयर वो मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने बोरो किया, बट पिछले 2 क्वार्टर्स में, और अब हमको तीसरा क्वार्टर का रिजल्ट भी मिल जाएगा। तीसरा क्वार्टर कब कंप्लीट होता है? दिसंबर में। पहला क्वार्टर शुरू होता है अप्रैल से जून, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सेकेंड क्वार्टर में भी वी वर लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। थर्ड क्वार्टर में अभी रिजल्ट आएगा जनवरी, अक्टूबर टू जनवरी, अक्टूबर टू दिसंबर वाला, उसका रिजल्ट आपको अभी 1 हफ्ते 10 दिन में देखने को मिलेगा। उस क्वार्टर में भी इंडिया विल बी परफॉर्मिंग रियली वेल। तो ग्रोथ गवर्नमेंट का, इंडियन इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ में चल रहा है, इसलिए ये पहला पॉइंट ये आपको सिग्निफाई कर रहा है कि वी नीड टू बैलेंस इट आउट। बैलेंस इट आउट मतलब ये दोनों में हमको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। बैलेंसिंग किस तरीके से कि अब बहुत ज्यादा बोरो भी नहीं करें, क्योंकि ऑलरेडी हम ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में शायद मूव कर रहे हैं, बट ये अभी एक डिलेमा है। फिलहाल मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि अपने आप में एक लंबा डिस्कशन है। बहुत सारे जो फाइनेंशियल विजार्ड्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, खासकर रघुराम राजन एंड ऑल, हैज ऑलरेडी कमेंटेड ऑन द ग्रोथ स्टेट एट प्रेजेंट इंडिया इज विटनेसिंग। बट लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। फिलहाल यस, वी आर मूविंग इन अ फास्ट पेस। तो ग्रोथ को बैलेंस करना है, मतलब बोरोइंग्स कम होगी तो इनकम बढ़ाने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन है। सेकेंड वुड बी टैक्सेशन। तो एज आई टोल्ड यू, चैलेंज जो मेन है टैक्सेशन को लेके कि कैसे टैक्सेशन को मैनेज किया जाए, क्योंकि इनकम रिड्यूस हुआ है, आप देखेंगे गवर्नमेंट का इनकम रिड्यूस हुआ है और ऑलरेडी फिस्कल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो टैक्सेशन को लेके किस तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं। मैंने आपको क्लियरली मेरा वर्डिक्ट दे दिया, डायरेक्ट टैक्सेस में बदलाव होने के चांसेस बहुत कम है। जो कुछ होगा वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू ही होगा, और उसमें भी गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस कर दिया, पेट्रोल विल कम अंडर जीएसटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इससे क्या होगा? ह्यूज लॉसेस टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। व्हाट इज द मैक्सिमम स्लैब ऑफ जीएसटी? कितना मैक्सिमम जीएसटी लगा सकते हो आप? 28% इज द मैक्सिमम स्लैब ऑफ जीएसटी। इसके ऊपर आप नहीं लगा सकते। और एक्साइज ड्यूटी, उसकी कोई मैक्सिमम स्लैब नहीं है। आप एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोलियम में पे करते हैं वो लगभग 100% के आसपास जाता है, सेंट्रल और स्टेट मिला के। कई कई स्टेट में 70-80% तक भी जाता है। तो अगर टैक्स जीएसटी पे आ गया, इसका मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ह्यूज इनकम गई। तो वो भी बड़ा मैनेजमेंट बड़ा दिक्कत है कि अगर जीएसटी पे ले आए तो वो कैसे लेके आएंगे। आई डाउट, आई रियली डाउट ऑन दैट। इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली अपना प्रॉमिस जारी रखेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की। दिस हैज बीन सेड इन अक्रॉस द वर्ल्ड, खासकर डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए। शुड रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूएस, यूरोपियन इकोनॉमी एंड इंडिया। We both are in pandemic, but their style of coming out of a pandemic is different, and our style has to be different. Their style is very simple: Keynesian policy. जब भी आप क्राइसिस में हैं, लोगों की जेब में पैसे डालो, 0% रेट पे आपको लोन मिल रहा है, आपके अकाउंट में पैसे आएगा, आप क्या करोगे? खर्च करोगे ना सीधा। जैसे ही आप कंजम्पशन करना चालू करोगे, इकोनॉमी वापस रिवाइव, और फिर आपको पैसे देने में बहुत आसानी से पैसे दिए जाते हैं। जिन्होंने मनी हेस्ट देखा है, पहले पार्ट 1, 2, 3, वो बहुत अच्छे से जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। दैट इज व्हाट द प्रोफेसर वाज सेइंग। पीपल, गवर्नमेंट इज एक्चुअली चीटिंग अस बाय पेइंग मनी इन आवर हैंड। अल्टीमेटली वो पैसे बना रहे हैं, अल्टीमेटली वो पैसे एक लूप क्रिएट कर रहे हैं, और उससे कहीं ना कहीं हमें बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो व्हाई नॉट टू चीट government itself? That is what his ultimate purpose. I am not supporting professor, but what I am trying to say here is this is what the style that the foreign, the developed world follows. But India does not have this policy. आपको यदि मैंने बहुत सारा पैसा दे दिया फ्री में, आप क्या करोगे? खर्च करोगे? ये बच्चा बेचारा खर्च करेगा, सही ना? सही बात है। लेट मी टेल यू, पीपल विल नॉट गोइंग टू स्पेंड मच मनी। वो स्टार्ट कर देंगे सेविंग करना, और वो अल्टीमेटली टारगेट कर जाएगा इन्फ्लेशन को, जो एट प्रेजेंट वी आर डीलिंग विद। सो व्हाट अल्टीमेटली सोल्यूशन विद द गवर्नमेंट इज, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करो, स्पेंडिंग। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग होगी, अपने आप चीजें वापस पॉजिटिवली रिवाइव होना चालू हो जाएंगी।
ठीक है, तो थर्ड थिंग वुड बी बूस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी देयर कंपल्सरी, यू शुड रीड इट. Is my voice clear? Can you come again once again, guys? Yes. 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 Yeah. Yeah. थोड़ा सा I'm sorry for this. हाँ. So fourth thing is undoubtedly the problem which cryptocurrencies we are facing at present. We can see the golden run of cryptocurrency has been fallen like anything. We have witnessed one of the major decrease in the prices of Bitcoin and other major cryptocurrencies. So I hope you should read this. Cryptocurrencies को लेके definitely I'm pretty sure that government will be coming up with some or other rules. Although it was expected in the last winter session that cryptocurrency के लिए कुछ पार्लियामेंटली बिल आएगा, बट गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, अभी इस पर टच नहीं करते हैं. देर आर मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स देन दैट. सो दैट्स व्हाई, बट दिस बजट आई बिलीव आएगा. एंड फिफ्थ इज मोनेटाइजेशन. सो हमें पिछले साल गवर्नमेंट ने एक नया डेफिनेशन दिया इनकम खड़ा करने का. ऑल्दो इट वाज देयर बट इट वाज नॉट वेरी पॉपुलर. फर्स्ट कैसा होता है, जब देखो मैंने आपको बताया टैक्सेशन और बोरोइंग करने के दो तरीके हैं. तीसरा तरीका जो हमने बताया था क्या था, असेट सेल का. तो असेट सेल करने के दो बेसिक तरीके जो आपने बहुत बार सुने होंगे. एक तो पूरी असेट बेच दो. सपोज गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्लॉट है, उस पे गवर्नमेंट को जरूरत है पैसों की, और वो प्लॉट गवर्नमेंट ने लेके बेच दिया. अब वो पूरा का पूरा बिक गया, तो जिसने खरीदा वो उसका ट्रांसफर ओनर हो गया. अब वो गवर्नमेंट को दोबारा नहीं मिल सकता, मतलब वन टाइम एक्टिविटी है. दूसरा होता है डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पार्शियली हिस्सा. तो क्लासिकल एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक है, पब्लिक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, कैसा बैंक है? गवर्नमेंट बैंक है. तो गवर्नमेंट पब्लिक बैंक बोला जाता है. तो गवर्नमेंट पब्लिक का मतलब क्या होता है कि उसमें गवर्नमेंट का मेजोरिटी शेयर है, बट पब्लिक का भी उसमें शेयर है. तो लगभग 55% इज बीन ओन्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब मोर देन मेजोरिटी, बट रिमेनिंग 45 पब्लिक. तो ये पब्लिक को जब बेचा गया होगा ये कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पार्शली आप बेच रहे हैं. अब तीसरा एक नया हमारे लिए पिछले साल से ओपन हो गया, इसका इतना इस्तेमाल नहीं किया था. आप देखते होंगे गवर्नमेंट की इतनी सारी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, बट वो ऐसी ही पड़ी हुई, यूज ही नहीं हो रही. तो गवर्नमेंट ने थर्ड टाइप इस्तेमाल किया अभी नवंबर में. इसको और प्लान किया जाएगा. इसको बोला गया मोनेटाइजेशन. मोनेटाइजेशन मतलब होता है लीजिंग. सो अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है बट मुझे बेचना नहीं है, तो मैं क्या कर दूं, रेंट पे चढ़ा दूं उसको. ये हम करते हैं हमारे पास. तो वही गवर्नमेंट का ये प्लान है कि लीज आउट कर दो, उसको पार्शली बेच दो, जितने भी मोनेटाइज करना है. तो इस पे गवर्नमेंट, और क्योंकि पूरा मोनेटाइजेशन का जो पैसा है गवर्नमेंट किधर लगाने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ लगाने वाला है. सो दीज मेजर थिंग्स दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बजट दिस ईयर. आई बिलीव monetization is the key. How government plans is very important, because disinvestment is tough. एक टाटा को बेचने के लिए, एक एयर इंडिया को बेचने के लिए पिछले 4 सालों से कोशिश की जा रही है, 3 से 4 सालों से. बैंकों में से कई पब्लिक बैंक ऐसे हैं जो केवल और केवल इस पूरी इकोनॉमी के लिए बोझ बने हुए हैं. देखो जब हम डिस्कशन करते हैं तो ये इतना डिबेटेबल टॉपिक है, क्या वी एज एन इंडिया डू वी नीड public sector organization? So my answer is partially yes and partially no. When I say partially yes, we need public sector organization in certain sector, at least to create a healthy and to watch. For example, banking, we need public sector, but we don't need these many public sector banks. We need only 3-4 public sector bank. That is more than sufficient. The problem in India is we were having 20 plus public sector banks. सो ये एक बड़ा कंसर्न है हमारे लिए. वो आपको समझना है कि इंडिया नीड 3-4-5 बिग पब्लिक बैंक्स जो ह्यूज हो, एसबीआई के जैसे ताकतवर. बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं. एसबीआई जो एनपीए क्राइसिस था, जब लोन का प्रॉब्लम हुआ, एक क्वार्टर में वो 10,000 करोड़ का नुकसान, और अगली क्वार्टर में उससे डबल का प्रॉफिट. ऐसा केवल एसबीआई कर सकता है. एसबीआई इतना पावरफुल कंपनी, इतना स्ट्रॉन्ग कंपनी. So basically we need banks like SBI, we need more, but we don't need smaller banks.
should understand they are funded through our money. आपका पैसा ही फंड हो रहा है उसमें, क्योंकि आप टैक्स पे कर रहे हो ना, नहीं पे कर रहे हो, जीएसटी पे कर रहे हो। मैंने बताया मोर देन 55% इनकम गवर्नमेंट की कहां से आ रही है, यहीं से। अब ये लॉसेस में जा रहे हैं, ये बड़ा, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इतना। आज जो घोटाला हुआ था, आप अगर देखेंगे दो मेजर बड़ी प्रॉब्लम। एक तो आपका विजय माल्या का घोटाला पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए था, दूसरा घोटाला जो था अपना नीरव मोदी वाला, वो भी पब्लिक सेक्टर का था। क्या इसके अलावा घोटाले नहीं हुए? हुए। बट आपको पता चले? नहीं पता चले। क्यों नहीं पता चले? क्योंकि वो प्राइवेट बैंक के थे, वो उनकी तो उनकी उनको देखना है, हमको क्या लेना देना उससे। प्राइवेट बैंक अगर उनके यहाँ घोटाला होता है वो उनकी उनकी प्रॉब्लम है, बट पब्लिक बैंक में प्रॉब्लम होता है मतलब वो हमारी प्रॉब्लम, सबकी प्रॉब्लम। एंड दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इन ऑल द स्टेट, ऑल द सेक्टर्स। कुछ सेक्टर्स में ऐसा है जहां इंडिया को रहना ही पड़ेगा, जैसे टेलीकॉम। वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग 5G this year, hope so, after this financial year probably 5G, because अगर नहीं इंट्रोड्यूस किया, आपको नहीं पता है, अगर इंट्रोड्यूस नहीं किया जल्दी से जल्दी इस साल के एंड तक, लेट से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक, बहुत पिछड़ जाने वाले हैं। चाइना विल एक्चुअली गोइंग टू लीड एवरीथिंग, विल टेक ओवर एवरीथिंग। आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट वॉर वेपन से नहीं लड़ा जाएगा, डेटा से लड़ा जाएगा। जिसके पास डेटा है, जिसके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर डेटा है, वो लड़ने वाला है। इसलिए मैं हर बार बोलता हूं, आप पढ़ो, रीड करो, डेटा के बारे में अंडरस्टैंड करो, कॉम्प्रीहेंड करना चालू करो। पूरा वर्ल्ड जो है वो अब डेटा पे लड़ने वाले हैं। आज भी आप देखेंगे हर चीज डेटा पे चलती है। सो इन 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 ब्रॉडली अगर हमने 5G जल्दी से नहीं लिया, बहुत पिछड़ जाएंगे। चाइना और अदर इकोनॉमीज बहुत बहुत आगे निकल जाने वाले। और इस टाइम हमको टाइम नहीं है। अभी तक जितने भी रेवोल्यूशन हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसमें इंडिया बहुत स्लोली स्लोली उसको अडॉप्ट करता रहा। इस बार अगर पिछड़े तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा। तो काफी उसके कॉन्स्टेंट्स हैं। अभी देख रहे हैं जूही चावला जी ने पिटिशन भी दायर की थी 5G को लेके, और उसके बाद 20 लाख रुपए का फाइन भी लगा कि क्यों मजाक करने आ जाते हो आप। उनका कहना था कि 5G इज एक्चुअली क्रिएटिंग हैजार्ड, बेसिकली हैजार्ड। बट वो अभी भी बहुत सारे फैक्ट हैं उसमें, और गवर्नमेंट का कहना है, कोर्ट का कहना कि हमारा क्यों आप समय खराब कर रहे हो इन सब चीजों को लेकर। ठीक है, तो 20 लाख का फाइन लगा, और अभी परसों नरसों की न्यूज में उसको 2 लाख कर दिया, क्योंकि बाकी टाइम पे जो पैसे कम किया वो इसलिए कम किया कि वो सोशल सर्विस करेंगी वहां के बच्चों के लिए। सो ये ध्यान रखिए कि इंडिया कैन नॉट वेट फॉर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, दे हैव टू अडॉप्ट एज सून एज पॉसिबल। एंड उसमें से भी डेटा, डेटा मैनेजमेंट, डेटा साइंस, डेटा थिंग्स इज वेरी वेरी क्रूशियल गाइस। फाइनली, tell me the answer for this question number 4th. Niti Aayog. What is Niti Aayog and who is the CEO of Niti Aayog? So Niti Aayog is actually a new name of Planning Commission. 5 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ा है बचपन में आपने, सिविक्स में पढ़ते थे, राइट? सिविक्स में था या किस में था ये? इकोनॉमिक्स में होगा आई बिलीव। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते थे शायद ये। तो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, प्लानिंग। तो उसको पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था हमारे देश में प्लानिंग कमीशन। उसका नाम बदल के अब हो गया है नीति आयोग। नीति आयोग इज बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इट इज नथिंग बट अ न्यू प्लानिंग कमीशन। लास्ट 5 ईयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 या 6 ईयर्स पहले ये गवर्नमेंट ने चेंज किया था। 2015 या 16 होगा, जो भी आप एक बार देखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके सीईओ होते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? बाय डिफॉल्ट चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज अ बाय डिफॉल्ट चेयरमैन। तो चेयरमैन कुछ नहीं करेगा, चेयरमैन साइन करेगा बस। एक्चुअली प्लान कौन करता है? सीईओ। सो सीईओ, ही इज द मैन, मिस्टर अमिताभ कांत इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। ठीक है, शुड रिमेंबर दिस गाइस। know these faces know these faces because this will actually make your life simpler. एक ऑनेस्ट आपको मैं बात बता रहा हूं, 6 महीने से मैंने अपने टीवी का रिचार्ज नहीं करवाया। मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। मेरे मेरे टीवी में केवल कुछ स्ट्रीमिंग साइट्स होती है, वो भी मैं जब मर्जी होती तब देखता हूँ। ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ। मैंने 6 महीने से न्यूज नहीं देखी है, बट आप देख लीजिए, मैं अपडेटेड तो हूँ। तो न्यूज देखने का तरीका बदल दिया है।
जो मैंने पिछले 3-4 सालों में अडॉप्ट कर लिया था गलत तरीका बाय वॉचिंग, वो मैंने चेंज किया है। आपको रीडिंग ही सबसे अच्छा तरीका है। रीडिंग के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको न्यूज देखना है, न्यूज चैनल्स को आप आधा घंटे से ज्यादा अगर देख रहे हैं तो आप उसके लिए बहुत बुरी तरीके से पागल हो चुके हैं, और वो गलत है, वो आपको गलत दिखाया जा रहा है। और ये मैं अकेला नहीं कर रहा हूं। जो भी आज समझ रहा है कि जो न्यूज चैनल्स हैं वो केवल और केवल आपका दिमाग खराब कर रहे हैं, वो लोग डेफिनेटली ये कर रहे हैं। तो मैंने 6 महीने से रिचार्ज ही नहीं किया, वो बंद भी हो चुका है मेरा डिश टीवी। और ट्रस्ट मी, दिस इज बेसिकली एक्चुअली हेल्पिंग मी टू बी मोर स्टेबल। क्योंकि मैं गंदी गंदी न्यूज़ेस पढ़ ही नहीं रहा हूं। गंदी का मतलब है कि जो डिस्ट्रैक्टिंग न्यूज़ेस। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, जब आप इनको पढ़ने लगोगे तो आपकी लाइफ बहुत सिंपल होगी, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, और अच्छा आपका स्मूथ चलेगा। क्योंकि पार्ट ऑफ कल्चर है भाई, सोशल मीडिया पार्ट ऑफ कल्चर है। मैं सारी न्यूज मेरे फोन से पढ़ता हूँ, सारी न्यूज़ेस। और मुझे पता है कि मुझे कौन सी पढ़ना है, वो क्लिक हो जाती है, बाद में फिर मैं उसको सबको एलिमिनेट करता चलता हूँ। प्लीज ट्राई दिस गाइस एटलीस्ट फॉर अ मंथ। डोंट वॉच एनी न्यूज चैनल, डोंट वॉच एनी वीडियो यूट्यूब के ऐसी फालतू की न्यूज़ेस। ट्राई एंड रीडिंग न्यूज़पेपर, योर लाइफ विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, चलो। तो ये हमारा सीआईआई सुना है आपने? व्हाट इज सीआईआई? क्विकली, जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। We will wind up this thing in next 5-7 minutes. CII is Confederation of Indian Industries, इंडस्ट्री इन इंडिया। बेसिकली एसोसिएशन है हमारे इंडस्ट्रीज का, सारे इंडस्ट्री का। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक पोर्टल है जो सारे इंडस्ट्री का एक कॉमन एसोसिएशन है। ठीक है, तो इसका काम क्या है भाई कि हर चीज का एसोसिएशन होता है। हमारे कोचिंग क्लासेस का भी एसोसिएशन है। कुछ भी चीज हो तो कॉमन प्लेटफॉर्म में हम डिस्कस करने के लिए हर चीज का एक एसोसिएशन होता है। ये एक प्राइवेटली रन है, गवर्नमेंट का नहीं है सीआईआई की, ऐसा गवर्नमेंट ने बनाया होगा, बट ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने ये कुछ रिकमेंडेशन दिए जो मुझे अच्छे लगे, तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। पहला मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, एडर टू फिस्कल टारगेट ऑफ 6.8% ऑफ जीडीपी। दैट मींस गवर्नमेंट शुड नॉट मूव their fiscal deficit above 6.8, क्योंकि 6.8 इज अ खतरे का साइन। 6.8 इज नथिंग बट 6.8% आप बोरो कर रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या? वेयर एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम। तो 6.8% ऑफ जीडीपी से आप बोरो, ज्यादा बोरो नहीं करेंगे। तो लगभग $3,000 बिलियन आपकी जीडीपी है, उसका 7% अगर मैं बोलूं तो लगभग $210 बिलियन से ज्यादा बोरो मत करो, वो ये बोल रहा है। लगभग 3,000 बिलियन इज द जीडीपी, 7% इज लगभग $2,200 बिलियन। इससे ज्यादा बोरो मत करो, ये बोल रहे हैं। इससे ज्यादा बोरो करने से आर रेटिंग्स विल कम डाउन, और हमारे लिए एज एन इंडस्ट्री प्रॉब्लम होगा। रिड्यूस डेफिसिट ऑफ 4.5%। ऑलरेडी डेफिसिट जो है वो हमारा 6% पे जा चुका है, 6 और 6.5% पे जा चुका है। उसको 25-26 तक स्लोली फेज में आपको कम करना है। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। हैजन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू एलआईसी लास्ट 4 years इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 4 साल से मैं अपने बजट की पीपीटी में रखता हूं, पोस्ट बजट में, कि इस साल उसका डिसइन्वेस्टमेंट होगा। इस साल उसको, कंपनी को, एलआईसी को लिस्ट किया जाएगा स्टॉक मार्केट में नहीं। एलआईसी विल बी मदर ऑफ ऑल आईपीओस। आईपीओ अगर एलआईसी आ गया, एलआईसी मालूम है कौन है? एलआईसी इज अ बिग डैडी ऑफ स्टॉक मार्केट। तो आपने देखा होगा कि जब इट इज अ नेम ऑफ एलआईसी एक्चुअली। जब आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट 3 दिन पहले जब नीचे गिरा था तो करीब 2000 पॉइंट से ज्यादा नीचे गिरा था। बाद में वो सेटल कहां पे हुआ? आके 1500। तो ये 500 पॉइंट जो वापस ऊपर गया, ये हुआ कैसे? ये होता क्या है, जब भी कभी पैनिक होता है मार्केट में, एलआईसी इज द फर्स्ट पर्सन टू कम एंड सेव इंडिया, जो स्टॉक मार्केट होता है। और एलआईसी के अलावा और भी ऐसे, और भी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, लाइक ईपीएफओ है, एलआईसी है, और कुछ बैंक्स हैं, फाइनेंशियल बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोग आते हैं और पैसे वापस लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, ताकि स्टॉक मार्केट कूल डाउन होता है। अदरवाइज आपने देखा होगा कि 4 दिन 5 दिन जो भी पहले था, वो एकदम से पैनिक था बिल्कुल कि क्या हो गया और पता नहीं क्या होने वाला है ऐसा। और जबकि आप देखेंगे कंडीशन ठीक हो रहा है, इतना बुरा नहीं हो रहा है। जो दिसंबर लास्ट में लग रहा था वो आज लग रहा है क्या वैसा? नहीं, इट्स कूल डाउन। तो डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ एलआईसी करने से बहुत एडवांटेज है उसके लिए गवर्नमेंट को। डिसइन्वेस्टमेंट, हाँ, सेल नहीं किया जा रहा। डिसइन्वेस्टमेंट एंड सेलिंग एज अ डिफरेंट। सेलिंग मतलब
मेरे पास की चीज मैंने आपको बेच दिया। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कुछ हिस्सा बेचा, कुछ हिस्सा मतलब कंट्रोलिंग किसके पास है अभी भी, हमारे गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। एल आई सी, बीपीसीएल, बीपीसीएल आपने पेट्रोल भराया होगा, बीपी का पेट्रोल भरता है ना, कभी ऑब्जर्व किया क्या? अरे ऑब्जर्व किया करो भाई, तीन प्रकार की मार्केटिंग कंपनीज हैं, पेट्रोलिंग मार्केटिंग कंपनीज, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल। क्यों चाहिए तीन तीन कंपनी? गवर्नमेंट का ये कहना, अरे भाई तीन तीन कंपनी की जरूरत ही नहीं है। तो बीपीसीएल को बेचने के लिए निकाला, पर अभी तक बेच नहीं पाए। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की को भी गवर्नमेंट ने कोशिश किया बेचने की, पर अभी तक नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग है वाउचर स्कीम फॉर एजुकेशन एंड कंज्यूमर। लुक एट दिस, लुक एट, ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने लास्ट ईयर गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव देखा होगा, ये वाला एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन। लीव ट्रेवल कंसेशन मालूम है क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? ये कब की बात है? पहले पैनेडेमिक के दिवाली की बात है। फर्स्ट पैनेडेमिक के कंप्लीट होने के बाद दिवाली जब आया था, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एक ऑप्शन दिया कि आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, बट वो 10,000 रुपए आपको इतने पर्टिकुलर टाइम पे खर्च करना है, और वो खर्च यहां नहीं करो, उसके लिए कहीं घूमने जाओ या कहीं वो जाओ। तो ये गवर्नमेंट का कैश इन हैंड वाला स्कीम है। ये थोड़ा हुआ, बहुत लंबा नहीं हुआ। आप बोलेंगे सर ये तो यूरोपियन भी तो वैसे ही कर रहे हैं, बट हमने ये लिमिटेड में किया। यूरोपियन नेशन और यूएस वाला स्टाइल अगर आप फॉलो करोगे तो आपके अकाउंट में भी पैसे आने लगेंगे, आप लोगों को भी पैसे मिलना चालू हो जाएगा। तो जो आप खर्चा नहीं कर रहे वो भी आप खर्च करना चालू कर दो, और कहीं ना कहीं वो गलत है। 140 करोड़ पॉपुलेशन में इम्पॉसिबल है, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो एलटीसी के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि वाउचर स्कीम आप एजुकेशन और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए भी लाइए, ताकि एजुकेशन और कंज्यूमर ड्यूरेबल में जो झटका लगा है वो बराबर हो सके। C4 फ्रेट्स जो है, ये बहुत टेक्निकल हो गया। ये एक और बहुत क्रूशल है, चाइना से हमारा प्रॉब्लम हुआ गैलवान वैली फर्स्ट पैनेडेमिक में, 15 जून, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने शायद सुसाइड किया था, बट वो पूरा धुल गया क्योंकि 15 जून को हमारे 20 सोल्जर्स मार्टियर हुए। उसके बाद से चाइना से हमारा प्रॉब्लम हुआ। तो जो चाइना से इंटायर प्रॉब्लम चल रहा था, वो सारा प्रॉब्लम में एक बात सबको आने लगी थी कि अब चाइना से हम किसी भी तरीके से बदला लेंगे, और सबसे अच्छा बदला क्या है, वहां की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कहां पे ले आए, अपने देश। तो इसके लिए उन्होंने एक क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स को शुरू किया था उन्होंने, ठीक है। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स को वो चालू किया था, जिसका मेजर पर्पस ये था कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बढ़ाओ, या आप हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग करिए। बाहर के लोगों के लिए क्या था फायदा, आप आइए और यहीं प्रोड्यूस करिए इंडिया में। इससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग हमारा सेक्टर इंप्रूव होगा। दूसरा, एग्जिस्टिंग जितने भी फॉरेन थे या नेशनल थे, उनको भी लिंक करने के लिए बोला गया। इससे क्या हुआ कि आप गवर्नमेंट एज अ कंपनी आपको एक इंसेंटिव मिल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किया जाए। ज्यादा प्रोड्यूस होगा, लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। पैरेलली ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ज्यादा बिकेगा, ज्यादा बिकेगा, इससे हमारा पूरा इकोनॉमी रिवाइव होगा। तो गवर्नमेंट वाज एक्चुअली, दैट वाज अ सक्सेस, हाँ सीरियसली इट वाज अ सक्सेस, वेयर सब्सिडी स्कीम्स के काफी बेनिफिट्स हुए। मोबाइल फोन के लिए सबसे बड़ा ये सब्सिडी स्कीम आया था, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई कि आप अगर एक स्पेसिफिक जो मोबाइल है वो यहीं प्रोड्यूस करोगे, जो हम कहाँ प्रोड्यूस कर रहे थे, जो हम कहाँ क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। अब वो इंपोर्ट को ना करते हुए आप क्या करो, यहाँ प्रोड्यूस करो, तो हर फोन पे आपको एक एक्स अमाउंट, कुछ 5% या 10% का बेनिफिट था, अच्छा खासा बेनिफिट था। तो वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है पर मोबाइल फोन के हिसाब से जाया जाए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि उसको और क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स को स्टार्ट किया जाए। फंड स्कीम्स फॉर टेक अडॉप्शन, टेक्निकली मैंने बोला 5G और बाकी टेक्नोलॉजीज को हमको लेके आना चाहिए। स्टेप अप के लिए तो बहुत गवर्नमेंट कर ही रहा है। आप देखेंगे 21 will be remembered as a startup year of the country. More than 40 plus यूनिकॉर्न कंपनीज, और कितनी स्टार्टअप्स क्रिएट हुए होंगे जिसका कोई लिमिट नहीं। और ये शुरुआत हुई थी 4 साल पहले, जिसका रिजल्ट आपको कब मिल रहा है, अभी मिल रहा है। तो स्टार्टअप्स का तो काफी बड़ा एडवांटेज रहा है भाई। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का, दिस इज थोड़ा टफ, आई बिलीव ये आप बता पाए तो बहुत अच्छी बात है। सिंपल एक लैंग्वेज का डेफिनेशन है, बट टेल मी, फिजिकल डेफिशिएंट एंड प्राइमरी डेफिशिएंट।
फिस्कल डेफिसिट तो हमको पता है, एक्सपेंडिचर और इनकम का डिफरेंस, करेक्ट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, एनीवन? एक्सेलेंट अरुण। चलिए, सो वी हैव द आंसर विद अस नाउ, अरुण कुमार। द मेन डिफरेंस इज इंटरेस्ट पेमेंट। तो जो डेफिसिट अमाउंट है, अगर उसमें से इंटरेस्ट निकाल दिया जाए आपके टोटल एक्सपेंडिचर में से, वो प्राइमरी डेफिसिट होता है। इसका मेन रीजन ये है कि प्राइमरी डेफिसिट मतलब एक्चुअली जो डेफिसिट हुआ है हमारा, इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं वो किसके लिए पे कर रहे हैं, जो हमने एक्स्ट्रा बोरो किया है उसके लिए पे कर रहे हैं। तो वो तो हमारे बोरोइंग का एक एक्सपेंडिचर है, वो हमारा खर्चा नहीं है, वो हमने खर्चा नहीं किया, वो खर्चा है, पर वो किस पे खर्चा हो रहा है, बोरोइंग पे हो रहा है। तो यदि वो इंटरेस्ट को आपने हटा दिया तो जो बचा हुआ डेफिसिट होगा वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर है? तो प्राइमरी डेफिसिट इज व्हाट, बेसिकली आफ्टर डिडक्टिंग द इंटरेस्ट पेमेंट from fiscal deficit. Answer will be your primary deficit. You should remember this. Finally, the last slide, and then I will be open for the question answer session, and I will ask my colleagues to take a feedback. I am requesting everyone, please submit your feedback, and it will actually give us at least sense of an understanding कि कैसे आगे हम लोग को जाना है ना? Don't left out for while giving before giving the feedbacks. Okay, वो लिंक आप कॉपी कर सकते हैं, ये लिंक आप वो कर लीजिएगा। फाइनली रिगार्डिंग दी मार्केट्स, तो मैंने ये आपको बहुत डिस्कशन किया कि मार्केट्स एक्चुअली सबसे पहले रिएक्ट करते हैं, हम लोग बाद में रिएक्ट करेंगे, पहले कौन रिएक्ट करता है, मार्केट। और इट वाज अ हिस्ट्री कि जब भी बजट आने वाला रहता है उसके 10-15 दिन पहले मार्केट में एकदम हलचल होता है। एंड दिस इज व्हाट बेसिकली इज हैपनिंग एट प्रेजेंट। सिंस लास्ट 40 days मार्केट्स आर नॉट साउंडिंग गुड। उनको भी कोरोना हो गया है, ओमिक्रॉन लग गया है स्टॉक मार्केट को, एंड दैट इज व्हाई स्टॉक मार्केट इज मूविंग डाउन। अदरवाइज इंडियन स्टॉक मार्केट जो 2020 के का जो मैसेकर हुआ था, जो बिल्कुल 2020 में जिस तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट्स केम डाउन, उसको कंपेयर करते हुए अगर आप जाएंगे, जून जुलाई के बाद से जो रिवाइव होना चालू हुआ 2020 से 21 दिसंबर तक, दे वर इन पीक, they were the top markets across the world in terms of performance. उसके कई पॉजिटिव रीजन भी थे और कई इन्फ्लेटेड भी थे, बट स्टॉक मार्केट का एक बड़ा उसमें रहा है। क्रिप्टो के स्टार्टअप्स ये जो है, इनको लेके बहुत हद तक चेक करने वाली बात है। मेनली मैं चाहता था इस स्लाइड में आपको, बाकी तो पहले ऊपर वाले तो सेल्फ वो है, ये आपको हर्डल्स समझने पड़ेंगे। एट प्रेजेंट इंडिया इज विटनेसिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब हमारे पास अभी इन्फ्लेटरी टाइम चल रहा है, मतलब हमारा जो इन्फ्लेशन है नॉर्मल 5% के लेवल से ऊपर चला गया है, विच इज अ कंसर्न, विच इज रियली अ कंसर्न। इन्फ्लेशन यहां पर आपको ध्यान रखना है, प्लीज रीड। ये एक बड़ा कंसर्न तो है, बट उससे थोड़ा सा रिलीफ ये है कि जो इन्फ्लेशन है वो सप्लाई साइड है। सप्लाई साइड और डिमांड साइड दो अलग अलग इन्फ्लेशन होता है। ओनियन, ओनियन की डिमांड सडनली, आपको पता है कि जो विंटर सीजन होता है उसमें बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जनरली हमारा डाइट इंक्रीज हो जाता है। अब अगर विंटर सीजन में पर्याप्त मात्रा में आपका डिमांड फुलफिल नहीं हो पाया, तो ओनियन के प्राइस क्या होंगे, पुश हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे इंक्रीज, तो वो डिमांड साइड होगा, वो तो बहुत बड़ा कंसर्न है। बट सप्लाई साइड मतलब सिस्टम में इतना करेंसी अवेलेबल है, बट लोग उसको बाय नहीं कर रहे, परचेस नहीं कर रहे हैं, मतलब लोग कहीं ना कहीं, सप्लाई है मतलब पैसा है बट उसको स्पेंड नहीं कर रहे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल, आपके 100 रुपए है आपकी जेब में, 5% अगर इन्फ्लेशन है, अगले साल उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी 95। वाई? बिकॉज जिस चीज को आप 100 रुपए पे खर्च कर सकते हैं, वो अब कितने में चली गई है, 5% से बढ़ गई है। तो योर वैल्यू विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस, ऑल दो 100 का नोट 100 ही रहेगा, बट अब आपको 105 रुपए पे करना पड़ेगा उसके लिए। दैट मीन्स वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ इन्फ्लेशन ऑफ सप्लाई, एंड दिस इज नॉट द कंसर्न इन इंडिया। In the first time in so many years, we are seeing this inflation, supply side inflation in US also. तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम जैसे यूपीए गवर्नमेंट्स के टाइम पे था 2011, 12, 13 में इन्फ्लेशन 10% से ऊपर था,
वो कंसर्न नहीं है, बट यस इट इज अ मेजरली प्रॉब्लम हो सकता है. हायर फिजिकल डेफिसिट विल कॉज करंट अकाउंट डेफिसिट एट प्रेजेंट. व्हाट इज सीएडी? एफडी मैंने बताया. एफडी मतलब क्या हुआ? एक्सपेंडिचर माइनस इनकम. तो सीएडी विल बी इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट व्हेन द इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट. अब फिजिकल डेफिसिट बढ़ा तो आपका सीएडी बढ़ना स्वाभाविक है. हायर करंट डेफिसिट का मतलब होगा रुपी कम हो जाएगा और फिर से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. ये कभी मैं बहुत डिटेल में आपके सामने इसको डिस्कस करूंगा. At present, I cannot take it on a very detailed note. We just need to wind up this. RBI will be forced to raise rate. That is what, देखो ये chronologically ये happen होने वाला है. अभी आरबीआई ने इस बार मॉनेटरी पॉलिसी में रेट्स नहीं चेंज किए, बट अगर ये चलता रहा तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? रेट्स बढ़ाना पड़ेगा. और राइजिंग इंटरेस्ट का मतलब होगा कि डेंट इन इकोनॉमिक रिकवरी. आपको अभी होम लोन 6.5% पे मिल रहा है, 7% पे मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो 100 लोग लेने वाले थे डेफिनेटली 90 और 80 हो जाने वाले. तो अब जो 100 लोग घर खरीदने वाले थे वो अब 80 लोग हो गए. मतलब डिमांड कम हुआ कि नहीं हुआ? और कर सही ना कहीं डिमांड. तो ये एक बहुत नेगेटिव मैसेज देगा. सो इस पे सीतारमन जी का कंट्रोल होना बहुत क्रूशल है कि समहाउ इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए. वो सप्लाई साइड है तो भी उसको कंट्रोल किया जाए, प्रोडक्ट साइड पे या गुड साइड पे उतना नहीं है ये. ठीक है. सो I believe that's it from my side. If you have any queries, concerns, please do tell me. We have for shared uh, a form. तो एक आपको हमने एक फीडबैक फॉर्म दिया गाइस. जस्ट अ मिनट. हाँ, क्लिक क्यों नहीं हो रहा है इसमें? आप प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए एंड डू गिव अ फीडबैक टू अस एटलीस्ट फॉर सेक कि भाई कैसे ये सेशन और अच्छे से किया जा सकता है. यू कैन आस्क क्वेरीज. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी टू अनम्यूट. यहां पर किसी के साथ होगा. एक सेकेंड. हाँ गाइस, एक सेकेंड. लेट मी जस्ट गिव यू दी. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन. We will be sharing the feedback form in application itself, guys. So please give a feedback there. So first question has arrived to us. Ayush, privatization is useful or not for our country? देखिए, country like India need blend of both. India can never be a powerful nation, or probably let us not talk about the nationalization in per se. Let us talk about, if you want to feed our country of 140 crore, you have to grow. There is no alternative. There's only one way we can survive is to grow. And for a growth, we need, in some sector, we need privatized companies, and in some sector, we need a watchdog like public sector companies. So we need a blend of both, but we don't need an organization which is a burden to our economy. अब एक burden like Air India was in 40,000 crore losses, और वो पैसा कौन पे कर रहा है? हम ही पे कर रहे हैं, एयर इंडिया. तो ऐसे कंपनी की जरूरत क्यों है? यू डोंट नीड पर्सन, यू डोंट नीड कंपनीज फॉर एविएशन. इट इज प्रीटी मच लॉजिकल. बीपीसीएल, although it's a private organization, but still BPCL, although it's a profit making organization, but still why do we need a company? आप खुद सोचिए, जब आप क्राइसिस में हैं, आपके पास 3 बड़ी असेट्स हैं, तो उन असेट्स को बेचना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे आप? भाई, क्राइसिस से निकलना जरूरी है कि आप असेट रखोगे उसको देख के खुश रहोगे? फिर कौन उसको इस्तेमाल करेगा? आने वाली जनरेशन इस्तेमाल करेगी. आप अपने इलाज में मत खर्च करो, अपने लिए खर्च मत करो. वही तो प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारे साथ में कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी इंडिया को प्रैक्टिकली इन फ्यूचर में शायद उतनी जरूरत नहीं है. आई मे बी रॉन्ग ऑन सर्टेन केसेस, बट बच्चों ये बात समझिए कि प्राइवेटाइजेशन इज ऑलवेज नॉट बैड. Privatization, to some extent, it is good also. It generate competition in the sector. It gives revenue to government. It boosts confidence among the sectors. आपको अभी क्या चाहिए कि फॉरेन कंपनीज हमारे देश में आए और इन्वेस्ट करें, rather than
हम उनको भगाएं? ऐसे कितनी कंपनीज है जिनको हम बुला सकते थे बट वो बुला नहीं पा रहे हैं. So that is what the problem in India is. So I believe, yes, political election will impact on budget partially now, partially yes. In some extent, you will find UP is one of the very important state for every single, both for country, both for government and for the opposition. So somehow it will impact, but majorly I don't think so. जो impact जनरल इलेक्शन के टाइम पे होता है, जो जनरल इलेक्शन कब हमारे यहाँ पे होने वाले हैं 24 में, तो यू विल फाइंड टू मेजर बजट 23 एंड 24 के जो बजट्स होंगे वो पॉपुलिस्ट बजट होंगे. पॉपुलिस्ट बजट क्या होते हैं? फ्रीबीज वाले. ऑल्दो ये गवर्नमेंट ने नहीं किया इतना, बट तो भी फ्रीबीज वाले रहेंगे. विराज का कहना है कि सम बैंक्स आर इन प्रॉफिट, व्हाई स्टिल व्हाई आर दे डूइंग मर्जिंग एंड प्राइवेटाइजिंग. Let me tell you, banks are in private for some time and maximum time they are in a crisis. तो हो सकता है कि कुछ बैंक आपको प्राइवेट ग्रीन में दिख रहे हो, बट ब्रॉडली उन बैंकों का लॉन्गर व्यूज नहीं है और गवर्नमेंट को बेसल नॉर्म्स फॉलो करने हैं. बेसल नॉर्म्स क्या होता है ये शायद अभी मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, बट बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हमारे बैंक उतने कैपिटलाइज नहीं है. गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर बैंक रखने के लिए उनमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. सिंपल सेंटेंस की बात है. कहने का मतलब यह है कि आप वैसे ही क्राइसिस में हो, आपकी दुकान भले ही रोड पे खड़ी दिख रही है, आपको दिख रहा है कि 10 साल बाद उसको बहुत पैसा मिलेगा, बट उसको रखने के लिए आपको बहुत पैसा अभी खर्च करना पड़ेगा. विल यू एक्सपेंड उस दुकान को बचा के रखने के लिए, कि आप अभी का सोचोगे भाई अभी तो क्राइसिस में अपन अभी पहले अभी का सोचें. सो यस, आई डू एग्री, दीज ऑर्गेनाइजेशन बहुत लॉन्ग टाइम से बनते हैं, बट समय बदल गया है. वी आर लिविंग इन 5G. आपको पता है कि इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज ने ऑलरेडी बैंकों को हिट कर दिया है. आज आप पेमेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? बैंक का ऐप. किसका ऐप यूज करते हैं आप बताइए? यू आर यूजिंग व्हाट? पेटीएम, गूगल पे. ये कोई बैंक है? तो दे आर ऑलरेडी हिटिंग. इंश्योरेंस खरीदने के लिए आप किसका यूज करते हैं? म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए क्या आप बैंकों के पास जा रहे हैं? नो. सो ऑलरेडी ये बैंक प्रॉब्लम में है, तो और आप कहां रखोगे भाई उनको? वी नीड बड़े बैंक्स, एसबीआई और लाइक दैट, बैंक ऑफ बड़ौदा और ये जो बड़े बैंक्स हैं इन लोगों को. पीएनबी बैंक, यस बैंक तो प्राइवेट है नहीं बेटा. यस बैंक इज अ प्राइवेट बैंक, तो वो तो अपने को कोई लेना देना नहीं है. एज एन इकोनॉमी वो क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है अपने को. बट पीएनबी बैंक ने बहुत अच्छा काम किया, बट आफ्टर द नीरव मोदी एपिसोड, actually the problem with PNB Bank is their entire management system is not that strong as compared to the other banks. So they are saving only those banks which can survive for future. सो आई कैन नॉट कमेंट कि भाई आप पीएनबी बैंकों को कितना डीप में कर रहे हैं, कैसे उसको पढ़ रहे हैं, बट पीएनबी बैंक का प्रॉब्लम वही है कि उतना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट नहीं हुआ, और इस कारण से अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई कहां तक मैं वॉच करते बैठूं इन सब चीजों को. ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल मर्ज, आई डोंट थिंक सो ऋषिकेश की ये पॉसिबल है. मुझे नहीं पता है कि ऐसी कोई न्यूज है भी, बट आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल को मर्ज करना एक अच्छा तरीका हो सकता था. सी, मर्जर विल सेव कॉस्ट, मर्जर विल सेव द रेगुलेटरी प्रोसेस. जो चीजें दो अलग तीन अलग अलग लोगों को करना था वो एक को ही करना पड़ रहा है. इट विल सेव माई टाइम, इट विल सेव माई कॉस्ट, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी. दो बड़ी कंपनी जब मर्ज होती हैं तो क्या होता है? जो इसका अच्छा है, जो इसका अच्छा है उसको ले लो और दोनों के बुरे को छोड़ दो. दैट इज व्हाट द बेस्ट थिंग इज इन मर्जर, right? So I believe there are certain ifs and buts on many news. There are contradiction, and you have all the rights. That is the beauty of India, that you have all the rights to not accept what I am saying. You can contradict whatever I am saying, and I can contradict whatever you are saying. This is you can do it. But whatever I feel and I understand about privatization, I have said you. Or this is not just a simple number I am telling you. This is the entire historical background says is when we got independence, that time we need, जो उस समय कांग्रेस ने किया वो सबसे अच्छा था.
और बट आज जो किया जा रहा है वो भी उतना ही रिक्वायरमेंट है. प्लीज एंड अंडरस्टैंड, वी आर नॉट इन 47 और 50s और 60s and 70s. We are in 2021. Nobody has ever thought about this world will be so dynamic. आप अभी बहुत इसमें यंग हैं, आप इन सब चीजों को उतना फेस नहीं कर रहे हैं. जैसे जैसे हम बिजनेस करते हैं हमको अब समझ में आने लगा कि द वर्ल्ड इज सो डायनेमिक. तो उसके हिसाब से आपको एक्सेप्टेंस पे लाना है. जो ऑर्गेनाइजेशन और जो पर्सन, एज एन इंडिविजुअल आप पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन एज अ कंपनी जो आप बोल रहे हैं, जो भी इसको एक्सेप्ट करेगा वो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज क्या होगा उसका, गया. हिमांशु, वी विल बी सेंडिंग द फॉर्म इन ग्रुप. जो ग्रुप है वहीं पर आपको मैसेज में वो फॉर्म मिल जाएगा, यहां कॉपी नहीं हो रहा है. GST need restructuring, can't we have one tax or maximum two? Yes, I agree, completely agreed, Rahul. We should have only two taxation, I think. One will be no GST and other will have a common GST for all. That is, I completely agree, it should be there. Session on GST. I'm not that subject expert. I am a general learner like you. So I may not be able to answer very detailed question on GST. That can be only answered by someone who has a expertise in indirect taxes, specifically GST. But yes, we will conduct such session in future, and specifically with knowledge enrichment part. We will call more people, not me अकेले. बहुत सारे हमारे जो guest speakers हैं, they will continue with it. So please be in touch. Pranav, can you just raise your hand, Pranav? I can unmute you. Raise your hand. किधर दिखता है ये? Yes, Pranav, you can speak now. Pranav, you wanted to speak. You can hear me, right, sir? I don't think so. You are audible. Is he audible? Is Pranav audible to anyone? Oh, how come it is not audible to me? On please go. Pranav, say again. Hello. So can you hear me now? Yes, yes. Hello. You can hear me? So I had a doubt. I had this doubt like 4 to 5 months back. Like sir, जैसे demonetization हुआ था, तो उसमें 500 and 1000 की नोट्स सैक कर दी थी, और उसके रिप्लेसमेंट्स भी आ चुके थे. लाइक 500 का न्यू करेंसी और एक एडिशनल करेंसी 2000 का नोट आ चुका था. बट सर मुझे डाउट ये था, अगर एंड आई अग्री के सर ये स्टेप के बाद बहुत सारा ब्लैक मनी रिकवर हुआ, बहुत से इलीगल बिजनेस थे वो सब बंद हो गए. बट मैं ये सोच रहा था कि अगर 500 एंड 1000 का नोट परमानेंटली सैक कर देते, लाइक द मैक्स डिनोमिनेटर नोट वुड बी 100. So don't you think, sir, it would be the best thing for a current, like for the country? मतलब I know थोड़ा पैसा कैरी करने के लिए इशू होता था. Okay, so now I'm answering. आवाज आ रहा है? Yes, sir, I can hear you. I'm audible, right? Now? Yes, sir. Yeah. So, if you are aware about the person who has given the presentation about demonetization is from Maharashtra only, and he has suggested exactly what Pranav has mentioned. But please try and understand, although they have introduced notes of 500 and 2000, तब भी वो 45 दिन हमारे देश के लिए पूरे तरीके, आप लोग, आई डोंट नो कितना आप लोगों को याद है, it was in 2016, exactly 16, India was basically has witnessed 8 November 2016 as India has witnessed what? Demonetization. So what Pranav was saying was perfectly correct, but feasibly it is not
पॉसिबल उस समय के लिए? आपके देश से आप पूरी की पूरी करेंसी को साफ करके 100 रुपए के नोट पे आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो ठीक है, बट अगर आपके पास 1 करोड़ है तो 100 के कितने नोट लगेंगे? आप समझ रहे हैं? तो सोचिए, वही ना सर, जस्ट अगर इमेजिन 100 के इतना इतने लाख सारे करोड़ नोट है, रुपए था, करीब इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20 15 to 18 लाख करोड़ रुपीस, उसको आप 100 डिनोमिनेशन में कन्वर्ट कर पाते? नो. So that is what government has done. I'm not supporting any decision of government, let me tell you. I was one of the person who was in favor, but in future course of time I realized that demonetization is not that successful as compared to it has been told. But demonetization could have been successful, what Pranav was saying, but again, it is not feasibly possible. And government, what they have realized it, what they have realized that government, if we cannot eliminate currency, so let convert the currency in a form of वर्चुअल, तो वर्चुअल करेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाए. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ. कैन यू सी द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ demonetization is we are using digital currency in a big way. I have never expected, I am doing business since last 7 years, I have never seen this much of a digital currency being offered in last 1.5 years. So what exactly is happening? Do you need notes now? So one time period of time, it will going to happen, आपको कुछ समय के बाद डिजिटल करेंसी ही सब कुछ हो जाने वाला है. You will not require any currency at all, and this is what the idea behind cryptocurrencies. So Pranav, your question and your answer was absolutely to the point, but just see the volume of currencies available in the system. कैसे कन्वर्ट होगा? इम्पॉसिबल था, बहुत ही डिफिकल्ट था. तो वो स्लोली फेजेस में होगा, और करेंसी को आप ऐसे रिप्लेस नहीं करेंगे, उसको डिजिटलाइज फॉर्म में ही करेंगे, एंड दैट इज व्हाट इंडिया ट्राइंग. और क्रिप्टो करेंसी के लिए इंडिया हैज रियलाइज, नॉट इंडिया, इनफैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, सबसे बड़ी बात चाइना हैज रियलाइज कि भाई क्रिप्टो करेंसी विल बी द फ्यूचर. सो दे ईच कंट्री इज नाउ प्लानिंग टू कम अप विद द क्रिप्टो करेंसी. तो यू मे, आई डोंट नो, आई मे बी गेसिंग रॉन्ग कि आपको ये वाले बजट में नहीं तो अगले बजट में तो डेफिनेटली सुनने को मिलेगा, इंडिया इज इंट्रोड्यूसिंग अ क्रिप्टो करेंसी. so I don't ठीक है, think so. इंडिया देयर ओन क्रिप्टो करेंसी. एक्चुअली In their budget वी आर also. वेटिंग फॉर व्हाट अदर टू स्टार्ट, एंड वी विल अंडरस्टैंड, राइट? लक्ष्मी, यस. सो ये नाम भी आ गया, यस यस, करेक्ट. ठीक है गाइस, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन. आई बिलीव आप लोगों को कुछ लर्न करने को मिला होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, एंड 1 फरवरी को बिल्कुल नहीं भूलेंगे. और सेकंड को मैंने जो पेपर परचेज करने को बोला है, टाइम्स ऑफ इंडिया की सेल्स कम से कम 150 से बढ़ जाना चाहिए, राइट? तो एटलीस्ट आप लोग सभी ये सेल्स पेपर परचेज करके पढ़िए, and we will inform you in application itself about the post budget session. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इस बार पैनल डिस्कशन भी है मेरा यहाँ पे किसी के साथ, तो वो सेशन हम नहीं करेंगे, मेरा कंप्लीट सेशन रखेंगे पोस्ट बजट, दैट विल बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ February. ठीक है, आई विश यू गुड लक गाइस. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड स्टे बिहाइंड टिल द एंड. थैंक यू सो मच एंड अ वंडरफुल वीक अहेड. थैंक यू. वो सब ब्लैक मनी के लिए होता ना कि वो बाहर. हाँ. सर लेकिन उस समय में जो रूमर्स चल रहे थे वो था कि 0.01% ही ब्लैक मनी वापस आई. ऐसा नहीं है, बहुत सारा करेंसी पकड़ा गया, बहुत सारा करेंसी वो निकाला गया, पर उससे ज्यादा इम्पैक्ट आपको अभी देखने को मिला ना. क्या आप सोच सकते थे 2016 में कि चाय पियोगे और 5 रुपए का पेमेंट, 7 रुपए का पेमेंट सोच सकते थे? तो भाई समझ आया? बोर हो गए? क्लियर हुआ? अब क्या करना है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. कंपलसरी पढ़िएगा, आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा आज का, छोटा सा ही रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, बजट को लेके ग्रुप में आ जाएगा. प्लीज डू इट एंड मेक श्योर दैट कि 1 फरवरी एंड 2 फरवरी को आप जरूर बजट को अच्छे से देखें. ठीक है, थैंक यू.